welcome to This is Imperative podcast. I hope you are good. Hi, Rashmi. Yes, I'm good. Thank you so much for asking. I hope you are also doing good. Yeah, I'm good. Thank you so much, and I'm really happy कि आपने time निकाला इस podcast के लिए. And yeah, तो let's start with. मैं पहले बता देती हूँ कि हमारे इस podcast में किस तरह से होता है. Like the parts sections. दो sections होते हैं, एक experience and then the technical part. Experience में हम अपने professionals के वो experience part life के जो भी problems आपने face किए अभी तक उसको डिस्कस करते हैं ताकि अगर कोई भी इसको आज के टाइम पे फेस कर रहा है तो वो उससे निकल पाए. एंड द सेकंड पार्ट द टेक्निकल पार्ट, जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आपका एक्सपर्टीज है उस पर हम डिस्कस करते हैं. सो या दिस इज हाउ इट इज. सो योर्स इज एडटेक एंड दैट वी हैव डिस्कस कि हमारा जो डिस्कशन होगा मोस्टली टेक्निकल होगा. हम उसको देखते हैं. लाइक वी विल स्टार्ट विद योर स्कूलिंग एंड देन हाउ जिस तरह से भी आगे बढ़ेगा. ठीक है. सो या तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप यही बता दीजिए कि आप इस वक्त क्या कर रहे हैं एंड व्हाट यू डू and about you and your whatever field you are working on. All right, first of all, thank you so much for having me over here. I'm really excited about it. And like I mentioned earlier as well, hopefully this whole scenario, whole podcast will go as productive as possible as your objectives are. And coming back to your question, so basically, I'm the CEO of a company named OmniLearn. It is an edtech company based in India, Canada, and UAE. Like we're having our physical presence in these countries. However, using our offices and the network of trainers, faculties, and the other team members, we have been providing online professional certification training across the world. And fortunately, so far, we have trained millions of professionals, and which includes the corporates, the companies, the universities, the individuals as well. So yeah, that's what I'm doing. However, currently my presence is in Delhi. So I basically operates from Delhi. Great, yeah, you're doing so good. So yeah, let's move towards schooling now. हम थोड़े से पहले आपको जान लें कि आपका जो हिस्ट्री रहा है वो कैसा है, आप कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो. तो हम फिर से वापस चलते हैं. इस पे हम फिर से आएंगे आपके टेक्निकल पार्ट पे, लेकिन पुराना चलते हैं हम आपके स्कूल से. लाइक आपकी स्कूलिंग कैसी रही है, आप किस तरह के स्टूडेंट थे, एंड या व्हाट यू वांटेड टू बिकम इन स्कूल, क्या चाहते थे आप? See, स्कूल मेरा बेसिकली आई बिलोंग टू यूपी, राइट. आई एम फ्रॉम बरेली. सो स्कूलिंग मेरी अपने सिटी के ही स्कूल से हुई है, बीबीएल पब्लिक स्कूल बेसिकली. सो स्कूल में क्या था ना, स्कूल में ऐसा नहीं था कि कभी मेरे कम मार्क्स आए व्हेन आई वाज लर्निंग इन द स्कूल, या मैं पढ़ाई कर रहा था, एग्जाम दे रहा था. तो मेरे कम मार्क्स इसलिए नहीं आते थे बिकॉज आई यूज्ड टू रेटिफाई थिंग्स, कि मुझे रट के पास होना है, वो वाला सिनेरियो था. तो कुछ भी आप मुझे मैथमेटिक्स भी दोगे, मैं रट लूंगा, मैं पास हो जाऊंगा. दैट्स द होल कॉन्सेप्ट. अभी क्या रहता है, वो 12th तक तो काम आ जाता है क्योंकि there's a predefined syllabus where it work. But उसके बाद when you try to get into the engineering colleges, just like any other a guy specifically in UP, कि भाई ठीक है engineering करनी ही करनी है. और हम लोग के टाइम में तो you know it well as well, कि everyone wants to get into the engineering, कि engineering में आना ही आना है. So वो रटने वाला फिगर IIT, IEEE, ये सब UPTU, ये सब क्वालिफाई नहीं कर सकता आपको. You have to have an understanding. So अगर सिर्फ स्कूल की बात करता हूँ, so I was getting good marks in school, but that was not coming out of my knowledge. It was coming out of what I was just reading and putting it on the papers. That's my school life was. School के time पे I was planning to actually become a pilot, Indian Air Force. So that was my objective कि ठीक है, अभी 12th के बाद I'll be in the Indian Air Force. I'll try to do that, all those things. बट धीरे धीरे 10th 12th के पास आते आते इट रियलाइज कि ठीक है, अभी आई गॉट इनटू एन एनडीए. लाइक एनडीए निकाला था मैंने 12th के बाद, बट फाइनल राउंड में आई गॉट आउट लास्ट 2 में आके. दैट वाज फॉर इंडियन आर्मी ओनली. देन तो वो चीजें थोड़ा डिमिनिश हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो देन ऑफ कोर्स लाइक any other individual in UP specifically, I also got into engineering. That's all it was for me. ओके ग्रेट. या सो स्कूल हो गया, एनडीए नहीं हो पाया, देन यू मूव टुवर्ड्स इंजीनियरिंग. तो कॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत कि व्हाट ब्रांच एंड हाउ, मतलब कॉलेज लाइफ कैसी रही, मस्ती हुई, पढ़ाई हुई, क्या हुआ उसमें?
ओके, तो पहली बात तो ये कि कोई बहुत अच्छा मेरा रैंक आया नहीं था कहीं पे, राइट? सो ठीक ठाक था, बहुत अच्छा नहीं था। सो व्हाट आई हैव डिसाइडेड पर्सनली आफ्टर 12th कि ठीक है, अभी रैंक अच्छा नहीं आया तो लेट मी चूज अ कॉलेज जहां पे मेरे सबसे कम पैसे खर्च हो। दैट्स अ थॉट, राइट? कि पैसा खर्चा नहीं होना चाहिए, राइट? एंड सो आई डिसाइडेड टू बी इन इलाहाबाद, प्रयागराज, which is now known as Prayagraj, of course, कि ठीक है कॉलेज में आते हैं। आई जॉइन द कॉलेज, गॉट अ ब्रांच ऑफ इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, क्योंकि रैंक बहुत अच्छी नहीं थी तो मैकेनिकल भी नहीं मिला, राइट? कंप्यूटर साइंस तो बहुत दूर की बात है, आई वॉज नॉट वेरी मच फॉन्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ कोर्स, बट देन इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से आई हैड टू सेट। तो व्हेन आई एंटर इनटू द कॉलेज, तो पहली बात तो आई वाज नॉट वेरी हैप्पी कि ठीक है, ऑफ कोर्स जो अब एंटर करते हैं तो थॉट होता है ना कि यार आईआईटी में जाना था, अभी पहुंच तो नहीं पाए वहां पे, तो अभी जहां पर आए वो एक एडजस्टमेंट था, लाइफ का एडजस्टमेंट था कि ठीक है इसमें ले लेते हैं, फीस कम है इसको पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट ईयर, फर्स्ट सेमेस्टर, things were good from the college perspective, from my seniors perspective, from the hostel perspective, but I got a back। पहले ही सेमेस्टर में मेरा बैक आया था कंप्यूटर साइंस में, एक्चुअली। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ कि मैं फेल हुआ था कभी। आई वाज वेरी अपसेट। So I called my brother, Mr. Akhand Pandit. So I called him. I asked कि भाई मैं तो फेल हो गया, I've never failed in life, I'm feeling very bad, so very bad. So my brother said that time, वो उसके बाद से मेरे दिमाग में रहा अभी तक है कि इट इज फाइन, वो इंजीनियर ही नहीं जो एक बार फेल ना हो, सो वो तो बनता ही बनता है तुम्हारा। सो एक्चुअली माई ब्रदर्स वर्ड्स, इट द वर्ड्स उनका ना बहुत इंपैक्ट होता है मेरी लाइफ में। लाइक मैं किसी और की सुनता ही नहीं हूँ, तो अगर उनसे कुछ आता है तो मुझे लगता है कि मुझे मानना ही है। सो आई बिलीव इट, आई लाइक फोकस ऑन हिज वर्ड्स। तो ऐसा काम करता हूँ मैं लाइफ में। सो आई गॉट दैट मोटिवेशन फ्रॉम हिम काइंड ऑफ कि ठीक है कोई बात नहीं, पास हो जाएगा, बैक तो आती है सबकी। तो देन आई प्रिपेयर, पास जो भी हुआ। कॉलेज लाइफ मेरी एकेडमिक नहीं रही थी, राइट? सो ऑफ कोर्स मेरा but attendance percentage was like 2%, 3% in the college for the first 3 years. However, people know me in the college because of the other activities, the other things which I did, but academically I was not good or famous as I was in my school time. तो पहले 3 साल तो आई वाज इनटू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो भी हम करते रहे। हॉस्टल लाइफ वाज लाइक इट्स एब्सोल्युटली फिनोमिनल, फ्रेंड सर्कल इज एब्सोल्युटली फिनोमिनल, एकेडमिकली नॉट गुड। तो जब फाइनल ईयर में आया बेसिकली मैं, कि थर्ड ईयर खत्म हो गया था, प्लेसमेंट से कॉलेज ने मुझे वैसे ही डिसबार कर दिया था कि भाई तुम क्या ही प्लेसमेंट में बैठोगे, क्यों 1% अटेंडेंस है तुम्हारी, परसेंटेज कुछ है नहीं, सो व्हाट यू आर गोइंग टू डू इन द प्लेसमेंट। सो इन दैट फाइनल ईयर बेसिकली आई डिसाइडेड कि इफ आई नॉट बी सीरियस नाउ, देन फिर मेरा करियर गया, फ्यूचर चला जाएगा। सो इन माई फाइनल ईयर, फोर्थ ईयर, बेसिकली आई लेफ्ट द कॉलेज एंड आई केम टू दिल्ली for preparing for GATE, IES, etc. What other mechanical engineers used to do basically. And in that particular year, I was so dedicated कि मैं एक दिन में 16 hours every day for entire year, I started learning, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया कि मुझे पढ़ना है, निकालना है। तो सो डेडिकेटेड टुवर्ड्स गेट, आईएएस की मैं 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे, आई वाज स्लीपिंग लाइक 4 hours अ डे एट दैट टाइम। तो वो डेडिकेशन बेसिकली जो फाइनल ईयर में था, सिर्फ 1 साल का था, और कुछ महीनों का बोल सकते हो आप, 7-8 महीने बोल सकते हो, उसकी वजह से आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 7th in GATE, then I get 67 in GATE, and then I also qualified engineering services in that final year. So that was my college. My college was not academically strong, but I got good friends, and the hostel life was, like I said, is pretty nice. I even today I remember it, and but yeah, that final year was a turning point for my career. That's what I can say. ग्रेट यार, आई थिंक ऐसे ही लोग कुछ करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। ग्रेट ग्रेट। सो दैट आई नो, आई मीन आई एम श्योर आप फेमस होंगे, मतलब जानते तो थे ही लोग। ओके, तो जैसे आपने अपने भैया के बारे में बोला, थोड़ा सा हम फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो यू नो, बीइंग अ बॉय, आई नो दिस इज हाउ, कैसे काम करता है कि लड़कों को ज्यादा लोग पूछते भी नहीं है, बट प्रेशर भी लड़कों पे ही होता है ज्यादा, लाइक क्योंकि लड़कियां कहीं ना कहीं वो करती है, दे आर वेरी डेडिकेटेड कि नहीं अच्छा इसे करना करना। जैसे ये कि आपके अपने 3 साल आपका पैसा गया, आपने उतना ध्यान भी नहीं दिया। तो हाउ वॉज योर फैमिली, योर ब्रदर वॉज ओके कूल, लाइक हाउ वॉज योर फैमिली वॉज टेकिंग दीज थिंग्स कि मतलब आपका जो ग्रोथ हो रहा है कॉलेज में, तो उसको किस तरह से बैलेंस कर रहे थे या किस तरह से वो ले रहे थे? व्हाट वाज देयर टेक? See,
my family, like my mom, my parents, my brother, they were very supported right from the beginning. तो जैसे स्कूल में भी था ना, मैं तो अगर मैं बंक कर रहा हूँ स्कूल, जैसे मैं बहुत बंक करता था 11th 12th में, कि मैं स्कूल से भाग गया, तो मैं भाग के ना आई कॉल माई मॉम कि मम्मा मैंने ना स्कूल बंक कर दिया, मैं घर जा रहा हूँ. सो उनको ये था कि ये ही इज नॉट, ही विल नेवर गेट इनटू एनीथिंग रॉन्ग, राइट. ही इज हैविंग दैट थिंग इन द बैक ऑफ हिज माइंड. तो माई फैमिली वॉज वेरी सपोर्टेड. वो उन्होंने कभी मुझे एजुकेशन या अकेडमिक के लिए कभी पोक ही नहीं किया कि भाई ये पढ़ना है तो फेल क्यों हो रहा है या नंबर क्यों नहीं आ रहे. लाइक दे न्यू कि वो शायद इसलिए भी बिकॉज माई ब्रदर, he did also very well. He got all India rank 1 in almost like 20 examination in India, Yeah, government examination. और टू Yeah. आस्क योर ब्रदर, बट हाँ बता ही रहे हो तो बताओ. So हाँ, तो उनका he passed after his graduation, he's a civil engineer basically. तो उन्होंने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन दिए. देखो सिविल मैकेनिकल का क्या है, गवर्नमेंट ही देना है. दैट्स व्हाट हमारे माइंड में ही होता है पहले कि पीएसयू में जाना है. हाँ, तो उन्होंने दिया. तो उससे क्या था ना, जब आपके घर में एक ऐसा इंसान हो ना जो, क्योंकि वो ही वॉज नॉट वेरी कि भाई एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हो. कॉलेज में, स्कूल में तो वो भी टॉपर थे, राइट. कॉलेज में उनका भी सेम सिनेरियो गया. तो आई एम बेसिकली ऑन द पाथ ऑफ माई ब्रदर ओनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तो वो सपोर्ट मेरे पास हमेशा रहा, राइट. और जब बड़ा भाई होते हैं ना, तो पेरेंट्स जैसे मम्मा थे स्कूल में, माई मदर, वो चलो थोड़ा बहुत ध्यान देते थे कि ठीक है देख ले, कोई दिक्कत हो रही है तो यू कैन टॉक टू हर, बट कभी पोक नहीं किया. बट जब एक स्टेज होती है आपकी लाइफ में, आपका बड़ा ब्रदर जो होता है वो कुछ बन जाता है, कहीं पे होता है, तो फिर आपके पेरेंट्स का जो वो रोल होता है ना, वो बड़े ब्रदर के पास आ जाता है, राइट. सो फॉर मी लाइक ही प्लेड दैट रोल ऑलवेज. तो मुझे कोई इशू भी होता था ना, मतलब कॉलेज में कभी कोई इशू हो गया तो डीन ने या हॉस्टल के जो हमारे ओनर, मतलब वो थे हेड, उन्होंने बोला कि यार अपने फैमिली को कॉल करो. तो आई कॉल माई ब्रदर, हाँ लेके बात कर लो करके. तो वो वाला मेरा सिनेरियो बन गया था उस टाइम पे. तो मुझे एकेडमिकली कभी फैमिली ने कुछ बोला ही नहीं, राइट. सपोर्ट ही किया हमेशा. तो शायद वही सपोर्ट ऐसा होता है जो आपको मोटिवेट करता है कि ठीक है अब आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए कुछ करने की. So that's what happened with me also in the final year when I, worked hard. I looked up to my brother as well. He also worked very hard. So I thought कि, that's the only way. वही एक ऑब्जेक्टिव या लाइफ का बोलते हैं ना, एक मंत्र होता है कि पूरी अपनी लाइफ के सिनेरियो में 1 साल आपको मेहनत करनी है. वो साल कभी भी आ सकता है, स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, बाद में 40 साल के बाद, कभी भी. सो इफ दैट इज व्हाट यू डू, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सक्सेस आपको मिल ही जाती है. सो या फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव. Great, yeah. So about your brother, I mean, he's very famous Yeah. personality on net. Yeah, he's very famous personality. अगर उनके बारे में हो ही रही है बात, तो लेट्स कनेक्ट. कि उनकी वजह से ही हम लोग कनेक्ट हुए थे अभी कुछ टाइम पहले, क्योंकि मैंने उनके बारे में आपके प्रोफाइल में देखा था. एंड आई थिंक 3-4 years बैक आई सॉ हिज वीडियो कि उन्होंने इतने एग्जाम क्रैक किए एंड ही इज गॉट फेमस बिकॉज ऑफ दैट. क्योंकि ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं, पर हमारे इंडिया में आधे से ज्यादा यूथ जो है वो प्रिपरेशन, एग्जाम प्रिपरेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए तैयारी करता है. मैंने वो स्टेटमेंट ही कैची कि उन्होंने टाइम पे इतने सारे एग्जाम्स क्रैक कर लिए जिसके लिए लोग लगे पड़े हुए हैं and नहीं हो रहा है उनसे. So yeah, so little bit about your brother, then we'll move towards your journey. See, my parents, they used to be teachers. Okay. तो टीचर थे एंड दे वर हाईली क्वालिफाइड टीचर्स. तो मेरे और मेरे ब्रदर के पास ऐसा नहीं था कि कि मतलब ठीक है अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमारा पास तो बहुत पीछे बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा विरासत है, प्रॉपर्टीज रखी हैं जिसपे विल बी एबल टू सर्वाइव इन आवर एंटायर लाइफ. सो when I got into my college, my brother also passed at a particular time from his college. तो उनके ऊपर केवल वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, उनके ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी, राइट. कि भाई ये तो मैं तो पढ़ रहा हूँ, हाउ कैन आई गेट इनटू एनी जॉब सो फार. तो टिल देन लाइक उस पर्टिकुलर टाइम पे तो उन्होंने same thing he did, right? In his final year, basically, when he was in the final year of his college, he worked so hard that he forgot about everything. कुछ भी नहीं. Like he used to work part time as well in जो फास्ट फूड कॉर्नर्स होते हैं वहां पे, बिकॉज लाइक आई सेड अब कोई बहुत ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं है जहां से रेंट आ रहा है हमारे पास कि हम फीस भी दे देंगे अपनी, फिर हम पढ़ाई भी कर लेंगे, फिर हम मस्ती भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं. वो हमारी लाइफ में था नहीं उस टाइम पे, राइट. बट सपोर्ट था और मोटिवेशन था पेरेंट्स का कि भाई ठीक है, उन्हें उनका ट्रस्ट था बेसिकली हम पे कि इन्होंने कुछ करना है, सो वी आर विद देम. तो माय ब्रदर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज्यादा थी क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनके ऊपर थी उस टाइम, राइट. सो उन्होंने अपनी लाइफ से वो ऑप्शन ही हटा दिया फेल होने का कि मुझे फेल, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं, आई कैन नॉट गेट फेल, राइट. सो द दैट थिंग, दैट होल ईयर व्हाट ही डिड, इट वाज बिकॉज आई सॉ इट, आई वाज विद हिम ओनली. तो
वो भी 18-20 घंटे पढ़ना, पूरे टाइम पढ़ते रहना, ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रेन के सीट पे बैठ के पढ़ रहे हैं, नीचे सीट बुकिंग नहीं हुई तो डोर पे बैठ के पढ़ रहे हैं कि बस पढ़ना है, दैट्स द होल सिनेरियो। तो उनका भी 1 साल का मेहनत था उस टाइम पे, बट दैट हैज अर्न हिम सो मच इन टर्म्स ऑफ हिज करियर। सो अब वो चीज हुई तो इट ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफर टू मी कि ठीक है यार, जब क्या होता है ना, आप अपने घर में किसी को देख लो ना एक एक लेवल से बहुत बड़ा बनते हुए, तो आपको ये दिख जाता है कि ये पॉसिबल है, कोई भी कर सकता है, राइट? क्योंकि लोगों को क्या होता है, लोगों ने देखा नहीं होता कि यार अभी आदमी 10 से 50 हजार कमा रहा है तो एकदम से कैसे उसका 2500 करोड़ का टर्नओवर बन जाना चाहिए। नॉट समझ नहीं पाता कि अपने घर में देखते हो ना तो आपको लगता है कि यार ये पॉसिबल है, यू जस्ट हैव टू डू हार्ड वर्क एंड ऑफ कोर्स स्मार्ट वर्क। So I saw that, and that's what my brother's journey was. And now, to, of course, everyone knows him, what he is doing. He's an entrepreneur and a big shot of our country. Yeah. या बॉस, या एक्चुअली मैं बोलने वाली थी कि जब आपने जो बताया ना वो 1 साल का, आई थिंक दैट्स कम फ्रॉम योर ब्रदर, क्योंकि इतना ज्यादा इम्पैक्ट है भाई का, आपके भैया का आपके ऊपर, कि आई थिंक वो जो भी करते हैं देन आप सबकॉन्शियसली उसको इनहेरिट कर लेते हो, एंड देन यू Absolutely. एग्जैक्टली द वे ही डिड। तो अच्छा ही है यार, मतलब आई थिंक ये तो होता ही है, बड़े भाई बहन का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट होता है आपकी लाइफ, Absolutely. आपके पे अच्छा रहा है, दैट्स गुड। ओके, तो मूव करते हैं फिर हम आपकी फैमिली के बारे में जान के बहुत ही अच्छा लगा, स्पेशली अबाउट योर ब्रदर। तो कॉलेज हो गया, देन आपने क्या चूज किया? मतलब आपके रैंक तो Okay. बहुत ही जगह आ गई थी, मतलब बहुत सारे एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए, देन व्हाट यू डिसाइडेड टू चूज टू गो फॉरवर्ड? Okay. So क्या हुआ, फाइनल ईयर के बाद आई गॉट अ गुड रैंक, राइट? तो मुझे कॉल आया एक इंडिया के लीडिंग इंस्टीट्यूट से एज अ फैकल्टी टू बिकम अ फैकल्टी, राइट? वो इट्स वन ऑफ द biggest institute in India. They train GATE and IES aspirants. It's based out of Delhi and the other parts of the country as well. So I got an opportunity to, be there. So I started training mechanical engineering पे मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया IES और GATE के एस्पिरेंट्स को, थ्योरी ऑफ मशीन या इंजीनियरिंग मैकेनिक्स वगैरह सब्जेक्ट्स। एंड देयर आफ्टर, लाइक आफ्टर 1 year, आई ऑल्सो डिसाइडेड कि यार मतलब मैं पढ़ा ही रहा हूँ, राइट? तो अभी क्या रहता है ना कि व्हेन यू आर इनटू टीचिंग, सो यू मस्ट, देयर इज अ मस्ट हैव क्वालिफिकेशन, राइट? ये मेरा मेरे सेल्फ कॉन्शियस को क्लियर करने के लिए था, बस और कुछ नहीं था। सो आई डिड माई मास्टर्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम बिट्स पिलानी। Okay, so I got into BITS, and in parallel I was working as well. Right, fortunately BITS में क्या है ना, अटेंडेंस का कोई इशू नहीं होता, so they are very much into काफी वो लीनियंट रहते हैं। उनका मतलब है कि आप पढ़ो, ऐसा नहीं कि आपको रोज कॉलेज आना है, आपको पढ़ना, आपको अपनी लाइफ करियर में एक्सेल करना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने टर्म्स पे कर सकते हैं। So I did my masters, and thereafter I got an opportunity to work with Ministry of Civil Aviation as an engineer. So I joined a PSU, public sector undertaking. It take cares of the operations of aircraft and aircraft engines coming and going outside of India, right? तो वो मैकेनिकल की कोर जॉब है, राइट? मैकेनिकल एविएशन इंजीनियरिंग कोर जॉब है, वो मैंने ज्वाइन किया। तो इफ यू से कि मेरा इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस क्या था, तो वो वहां से स्टार्ट हुआ है। हाउएवर मेरा करियर जब मैंने वो एज अ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया तब से स्टार्ट हो गया था। सो या दैट्स व्हाट आई डिड आफ्टर माय कॉलेज। ओके, तो योर मेन जो फोकस हमेशा से ही एजुकेशन रहा है, आई मीन दैट हाँ। इंडस्ट्री वाला था वो बाद में आपका आया शायद, आपके इंजीनियरिंग सॉरी आपका एमटेक कंप्लीट होने के बाद, देन यू गॉट इनटू थ्रू कैंपस, या फिर आपने कोई नो नो नो, गेट के एग्जाम से ही हुआ था वो। आई गेव गेट अगेन, आई गॉट अ रैंक 67, तो सेकंड टाइम जब दिया था तो उस 67 की रैंक से आई गॉट इनटू दिस कंपनी। और या दैट्स वेरी राइट एक्चुअली व्हाट यू सेड कि ये जो कि मैं पढ़ा सकता हूँ ना, पढ़ाना बड़ा एक अलग सा टास्क होता है। या आप नॉलेज गेन करते हो, बट डिलीवरी देना इज वेरी डिफिकल्ट, कि आपका डिलीवरी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो अनफॉर्चुनेटली आई विल से व्हेन आई गॉट अ फर्स्ट चांस, तो मुझे ना एक बैच होता है इन कंपनीज में, सुपर टैलेंट बैच करके। उसमें वो लोग होते हैं स्टूडेंट्स जो जिन्होंने आईआईटी निकाला हुआ है, वो अब आईआईटी या उन्होंने गेट निकाला हुआ है, इट इज अ रॉन्ग वर्ड, द गेट निकाला हुआ है, दे आर फ्रॉम आईआईटी, वो आईआईटी के ग्रेजुएट्स है, उनको पढ़ाना होता है आपने, राइट? अब मेरा फर्स्ट बैच था, मैंने पढ़ाया नहीं कहीं, तो मुझे नहीं पता कि मैं ये 500 लोगों के सामने कैसे पढ़ाऊंगा। एक बैच में 500 स्टूडेंट्स होते हैं, बट फ्रॉम देयर एक्चुअली आई गॉट टू नो कि दिस इज टीचिंग इज समथिंग विच आई लाइक अ लॉट, राइट? सो आप इसको उससे यू कैन कनेक्ट दिस ऑल्सो टू माई ब्रदर। My brother was teaching earlier, same institute, ओके right? Civil engineer. Yeah. So he was also a faculty over there. So
अब आप या ये कह सकते हो कि या तो मेरे पेरेंट्स से वो मेरे ब्रदर में भी आया है, वो मेरे अंदर भी आया है. सो फॉर्चुनेटली व्हेन आई टॉट माय फर्स्ट बैच आई गॉट अ वेरी गुड फीडबैक. लाइक इन कंपनी से क्या है ना, आपका फीडबैक अच्छा है, पढ़ो. जहां फीडबैक खराब हुआ यू आर आउट. तो एक ट्रेनर जो होता है वो एक आर्टिस्ट होता है बेसिकली, कि उसको हर क्लास में हर सेशन में फीडबैक अच्छा लाना है फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स इन द बैच. एक भी खराब हुआ तो यू आर आउट ऑफ दिस होल वर्ल्ड. सो देन दैट्स व्हाट एक्चुअली मोटिवेटेड मी कि ठीक है, दिस इज इन मी, आई कैन डू इट. फिर क्या हुआ, जब मैंने कंपनी ज्वाइन किया ना इंडस्ट्रियल, जो अब उसके साथ तो काम कर नहीं सकता, तो आई हैड टू लीव दैट. सो that's where I left training and I got into the industry. Up, we'll talk further and we'll talk about how the company has started. But this is what I say could be a better answer for your question. Okay, okay, great, yeah. I think now we can understand कि आपका जो shift है Omni Learn में क्यों हुआ. We will talk about it. Yeah. The Ministry of Civil Aviation, इस पे आपने काम किया था. इसके बारे में हम थोड़ा सा छोटे में बता दीजिए. Okay. So it's like any other PSU जो हमारी कंट्री में है. आप ONGC ले लो, IOC या कोई भी BHEL वगैरह जो भी PSUs है, वैसी कंपनी है. इस सोली एयर इंडिया जो थी ना, एयर इंडिया जो है, एयर इंडिया वो द गवर्नमेंट कंपनी, राइट? वी ऑल नो, वी प्राइवेट हुई है. सो बेसिकली आई वाज अ पार्ट ऑफ एयर इंडिया एट दैट टाइम. एयर इंडिया उस मिनिस्ट्री के अंदर ही आती है, राइट? सो बट आई वाज एन इंजीनियर, कि मैं ऑपरेशंस देखता था, प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल, एंड हाउ वी कैन प्रोड्यूस द इंजन्स फ्रॉम आवर शॉप्स व्हिच आर कमिंग फॉर मेंटेनेंस. सो दैट वाज माय जॉब इनिशियली. आई गॉट प्रमोटेड जस्ट लाइक एनी गवर्नमेंट कंपनी, बट इट वाज अ वेरी गुड एक्सपोजर. उससे जो टीम मैनेज करना, या इम्पॉसिबल टास्क को कैसे मैनेज कर सकते हो आप 100 लोगों की टीम को मेंबर करते हुए, मैनेज करते हुए, या कोई मिनिस्टर का प्लेन जाना है, तो जो प्रेशर उस टाइम पे होता है उसको कैसे हैंडल करना है लास्ट मोमेंट पे, कि नहीं ये तो होना है, राइट? इनफैक्ट सो मेनी प्रोजेक्ट्स व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. सो एक रियल लाइफ का एक्सपोजर जो होता है बाहर निकल के, जो रॉ लाइफ होती है, वो मुझे वहां पे मिला. जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे था वो तो एक क्या बोलते हैं, एक ड्रीम लाइफ होती है ना, कि मतलब हर चीज अच्छी हो रही है, आप पढ़ाने जा रहे हो तो पीपल आर कमिंग टू यू, टेकिंग योर बैग, मूविंग, हेल्पिंग यू आउट एंड मेकिंग यू फील लाइक यू आर द किंग ऑफ दिस पर्टिकुलर बैच, डू व्हाटएवर यू वांट. दैट वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड. इस वर्ल्ड ने एक रियल एक्सपीरियंस लाइफ का दिया, व्हिच आई थिंक हेल्प मी अ लॉट, इन 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 in sustaining a belief that one can actually achieve something higher than what that person is having right now. So yeah, वो पूरा मैकेनिकल कोड था, इंजन वगैरह की बात होती थी उसमें, और कुछ नहीं. दैट्स व्हाट इट इज ऑल अबाउट. थोड़ा सा और कि इस पे अगर कोई भी वांटेड टू गेट इनटू इट या फिर जाता है, तो उसे किस तरह का काम मिलेगा, अगर आप थोड़ा बता दें. So there are two types of jobs in aviation. एक होता है AME, which is aircraft maintenance engineer, all right? और एक होता है SSE, support engineers, basically technical support services. तो जो AME होता है वो एयरक्राफ्ट पे सारे मेंटेनेंस टास्क परफॉर्म करता है. मतलब अगर इंजन चेंज करना है तो उसके सुपरविजन में होगा, राइट? कुछ जो बिल्कुल कोर मैकेनिकल के जॉब्स होते हैं, टूल यूज करना, मशीन यूज करना, एयरक्राफ्ट में इंजन चेंज करना, एयरक्राफ्ट पे काम करना, उसका कॉकपिट ठीक करना, वगैरह वगैरह, राइट? दैट्स द जॉब ऑफ AME. वो एक मेन स्ट्रीम जॉब है. आई वॉज नॉट इन दैट. आई वॉज इन टू सपोर्ट सर्विसेज, बिकॉज मेरा ब्रांच मैकेनिकल नहीं था, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था. सो आई ऑप्टेड फॉर AME, बट AME मैकेनिकल वाले जा सकते हैं, तो इंडस्ट्रियल, बीइंग इंडस्ट्रियल पर्सन, मुझे इन्होंने सपोर्ट सर्विसेज में दिया, राइट? तो उस टाइम पे ऑल इंडिया सीट शायद 2 या 3 थी केवल, वेयर आई गॉट लाइक फॉर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. सो आई गॉट इनटू दैट. सो सपोर्ट सर्विस का काम क्या होता है, वो प्रोडक्शन प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल करता है. मतलब जैसे कोई इंजन जो है वो हैंगर में उतरा, अनस्टॉल हुआ हैंगर एरिया में. हैंगर इज द एरिया वेयर यू पार्क द एयरक्राफ्ट. वहां से इंजन उतर के किस टाइम पे आएगा, हमारी शॉप जो होती है, जो हमारी मतलब शॉप मीन्स जहां पे हम इंजन का मेंटेनेंस करते हैं, वो उन टीम मेंबर्स से कोऑर्डिनेट करना, एंश्योरिंग कि वो इंजन टाइमली यहां से निकल के वापस जाके एयरक्राफ्ट पे लगे, मेकिंग श्योर कि उसके सारे पैरामीटर क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हो, वो सारी चीजें मैनेज करना वाज माय जॉब, इंक्लूडिंग द बिलिंग पार्ट एज वेल, इज अ पार्ट ऑफ द होल डिपार्टमेंट. हाउएवर सपोर्ट सर्विसेज का काम ये होता है. सो आई वाज डूइंग दिस. तो अगर कोई जाता है तो दोनों ऑप्शंस होते हैं, AME और ये वाला. AME ज्यादा मेन स्ट्रीम है, पैसा ज्यादा है उसमें, राइट? सपोर्ट सर्विसेज थोड़ा सा उतना मेन स्ट्रीम नहीं है, बट या गवर्नमेंट जॉब है तो बेनिफिट्स अपने पर्क से उसके बेनिफिट्स हैं. दैट्स व्हाट इट इज. ग्रेट. आई थिंक यहाँ पे आपका वो जो स्कूल का जो सपना था ना, पायलट का, शायद उससे भी थोड़ा काइंड ऑफ, या
Yeah, kind of. I actually, that's very true. Ki, when you're seeing the aircraft, right in front of you, when you're working on it, you're learning about it. That, yeah, of course, gives you that feel. However, still, I feel कि Indian Air Force would have been a different thing. Because अभी तो एयरक्राफ्ट पे आप काम कर रहे हो, एयरक्राफ्ट फ्लाई नहीं करेगा. डेफिनेटली That's the कि whole वो कहीं ना difference. कहीं वो लिंक हो गया आपके, वो आपने Absolutely. मैनिफेस्ट कर लिया होगा. Yeah, I absolutely did that. या श्योर. ठीक है, ठीक है. तो यहाँ से अब हम आपकी जो रियल जर्नी है आपके एंटरप्रेन्योरशिप की वो स्टार्ट करते हैं कि आपका ये काम तो अच्छा चल ही रहा है एंड यू एज यू सेड कि मजा भी आ रहा था. देन व्हाट हैपेंड, व्हाई यू स्विच्ड एंड हाउ यू स्विच्ड? ओके सो क्या हुआ कि मेरा जो मतलब एक थॉट प्रोसेस है ना, वो ग्रोथ का बहुत ज्यादा है. कि मतलब मुझे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप आराम से रहो, जॉब करो, आप 60 साल की एज तक आपको कुछ नहीं करना है, गवर्नमेंट आपको देख रही है, ठीक है. ग्रोथ जो होती है वो टाइम बेस्ड होती है उसमें, कि ठीक है 3 साल बाद मैं प्रमोट हो गया, फिर अगले 2 साल बाद फिर प्रमोट हो जाऊंगा, 5 साल बाद फिर हो जाऊंगा. अब आई एम काइंड ऑफ एन इम्पेशेंट पर्सन फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव. तो मुझे था कि यार ये तो मेरे से नहीं होगा, बिकॉज आई हैव टू ग्रो. अभी मैं 40-50 ईयर्स तक की वेट नहीं कर सकता टू बिकम मैं जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी या जो भी होना है. सो उस थॉट के माइंड में रखते हुए मैंने कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन सीखे. जैसे लीन सिक्स सिग्मा था, मैंने पढ़ा. मेरे दिमाग में कंपनी खोलने का नहीं था उस टाइम पे, मैंने पढ़ा केवल उसको, लीन सिक्स सिग्मा को. फिर मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ा, पीएमपी सर्टिफिकेशन उसको बोलते हैं हम. तो उसको पढ़ा मैंने विद थॉट प्रोसेस की मुझे जॉब चेंज करनी है, कंपनी खोलनी है वो नहीं. मैंने कहा प्राइवेट में जाऊंगा, आई हैव दिस सर्टिफिकेशन, इट विल बी इजी फॉर मी. गवर्नमेंट से आ रहा हूं तो जॉब मिल जाएगी मुझे, इतना इशू होना नहीं चाहिए उसमें, ग्रोथ मेरी काफी अच्छी हो जाएगी उस. अब जब मैंने वो पढ़ा उसके बाद मैंने अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपडेट किया कि ठीक है मेरे पास ये सर्टिफिकेशंस हैं. सो क्या हुआ, 1 साल बाद आई गॉट अ कॉल फ्रॉम वन ऑफ द इंस्टीट्यूट जो इंडिया में ही है, वो भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से, इसका प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन का, कि क्या आप ये पढ़ाओगे, ठीक है, इस टाइप से करके. तो अब उस टाइम तक मैंने कुछ इसको नहीं पढ़ा है मतलब, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने पढ़ा है. तो एक फैकल्टी का जो पढ़ा सकता है उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है, वो कुछ भी पढ़ा सकता है. आप कुछ भी दे दो मुझे, अभी आप बोलो कि ऐसे है, अभी आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ानी है, आप मेरे को 10 दिन दो, राइट, आई लर्न एंड आई टीच. क्योंकि अल्टीमेटली टीचिंग में डिलीवरी इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. हाउ यू आर डिलीवरिंग इट, हाउ पीपल आर ग्रास्पिंग इट, राइट, और किस लेवल पे जाके आपको समझाते हो. तो मुझे ये पता था कि मैं पढ़ा सकता हूं, ये टॉपिक पढ़ा सकता हूं, वो नहीं पता था मुझे. बट सिंस आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी आई सेड लेट्स टेक इट. तो मैंने लिया. तो क्या होता था, हर बैच से पहले मैं कंटेंट बनाता था, पहले उसको पढ़ता था, फिर शाम को मैं वो पढ़ा देता था कि ठीक है इसको पढ़ा दिया. अभी क्या है, ये स्टूडेंट्स तो है नहीं, ये होते हैं प्रोफेशनल्स, या जो 10 साल से 20 साल से ये सर्टिफिकेशन उनके लिए है जो बहुत ही अपनी ऑलरेडी करियर में, जॉब में, या जॉब लेने वाले हैं, ये ऑलरेडी 20 साल से हैं, तो वो कुछ इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं अपनी कंपनी में. तो दे आर सीनियर पीपल, उनको आप ऐसे घुमा नहीं सकते इन चीजों में कि यार कुछ का किसी का आंसर कुछ भी दे दिया कि घूम गए वो. ऐसा नहीं है, दे नो थिंग्स. तो उसके लिए पढ़ना बहुत पड़ता था, कंटेंट बनाना पड़ता था, बट आई स्टार्टेड अगेन. फॉर्चुनेटली वो बैच खत्म हुआ, आई गॉट अ फीडबैक ऑफ 4.9 आउट ऑफ 5. तो आई थॉट यार ये तो बढ़िया चीज है. मतलब आई नाउ व्हाट हैज हैपेंड इफ यू ट्राई टू इंटरलिंक, कि जो मैंने कॉलेज के बाद किया, अब वो चीज सर्कल होके मेरे पास वापस आई. दैट वाज माय पैशन, राइट. तो वो पैशन ने क्लिक करा कि यार ये तो आप पैशन अपना लिव कर सकते हो, इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू. ठीक है, इंजीनियरिंग में वापस मत जाओ, बट ये दिस इज अ न्यू थिंग. सो देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, राइट. सो जब तक मैंने कंपनी नहीं खोली थी उससे पहले तक मैं अराउंड 3000 सेशंस अक्रॉस द वर्ल्ड ले चुका था, जो सर्टिफिकेट जो एक्सपर्टीज मेरे थे. और इफ यू से इन द कंट्री, राइट, आई एम वन ऑफ द फैकल्टी जिसका अभी तक का फीडबैक 4.8 से कम गया ही नहीं. नॉट ओनली इन दैट इंस्टीट्यूट, मैंने कम से कम नहीं तो 10 इंस्टीट्यूट्स में काम किया है सेम से एक साथ में. बिकॉज ये जॉब जो होती है फ्रीलांसिंग होती है, कोई परमानेंट जॉब नहीं होती, फ्रीलांस होता है. तो मैं सुबह बैच कोई और ले रहा हूँ, शाम को कोई और बैच ले रहा हूँ, संडे को कोई और बैच ले रहा हूँ, लाइक दैट. सो मैंने आई वॉज कंप्लीटली इन टू दिस वर्क कि मुझे करना ही करना है. और ऑफ कोर्स पैसा किसे बुरा लगता है, सो आई वाज गेटिंग गुड मनी आउट ऑफ इट, सो व्हाट आई सेड कि बेटर है, आई शुड डू इट. So that's where this whole concept of certification trainings started. Now thereafter, what happened कि जब मुझे लगा कि ठीक है सब सही चल रहा है, I was living a good life, to be very honest. Good life as in कि मतलब ठीक है मेरे पास अच्छा खासा आ रहा था, मेहनत ज्यादा थी मेरी. मेहनत इसलिए थी बिकॉज मैं शायद पूरे वीक पढ़ाता था, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे 7 to 11 इन द इवनिंग, एंड सैटरडे संडे मॉर्निंग 10 से लेकर रात में 9 बजे तक कंटिन्यूसली.
तो अच्छा था. The only thing which actually motivated me to open my company was the scenario of the finance. अभी ये कोर्सेज बहुत कॉस्टली होते हैं. ओके. और मेरा ऑब्जेक्टिव जो था उस कंपनी को ओपन करने का जो विजन भी हमेशा से रहा है, विद द सेम विजन माय ब्रदर आल्सो ओपन दिस कंपनी. जब उन्होंने पहली बार कैटलिस्ट खोली थी तो वो सेम विजन था उनका, राइट, कि यार ये एजुकेशन इतनी कॉस्टली हो चुकी है, लेट्स ट्राई टू मेक इट feasible. Let's try to make it, let's try to provide good quality in the least possible cost so that everyone can gain that education. किसी को financial constraints नहीं होना चाहिए. So that was the actually motto behind opening that company. So yeah, that's how it started. So I started my company and registered it in India, and thereafter it keeps on growing. So yeah, that was actually what happened before starting my company. ठीक है. सो आपको कभी नहीं लगा कि अपने भाई के साथ ही उसी, क्योंकि आप उनकी अभी सेम ही एजुकेशन पे ही था, तो आपने उनके साथ कभी ज्वाइन नहीं किया? लाइक मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ ये. See, there are two things. Okay, पहला तो ये कि उनका एजुकेशन इंजीनियरिंग में था, आईएएस में था. उन्होंने प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस में he hasn't entered, right? So it was a completely new domain, right? That was one thing. Second, absolutely, I could have joined any time at that. उस टाइम भी कर सकता था, अभी भी कर सकता हूँ, राइट. बट द होल पॉइंट इज दैट वो जो कंपनी है, मेरे ब्रदर की कंपनी है, उसमें उनका बहुत हार्ड वर्क लगा हुआ है, राइट. सो ही हैज एस्टैब्लिश्ड दैट कंपनी राइट फ्रॉम जीरो, राइट, बाय जोन. सो व्हाट थॉट प्रोसेस जिसपे वो काम करते हैं ना, वो सेम थॉट प्रोसेस मेरा भी है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आई कैन कोलैबोरेट. ऑफ कोर्स ब्रदर है, कोलैबोरेट क्या, वो तो फैमिली है, राइट. द होल पॉइंट इज कि मैं हाँ, कि मैं अपने आप ही अपनी कंपनी स्टैब्लिश करूं. उनके हार्ड वर्क का बेनिफिट एज अ ब्रदर मुझे मिल सकता है, बट एज एन एंटरप्रेन्योर आई हैव टू एक्सप्लोर माय पॉसिबिलिटीज एंड माय स्ट्रेंथ एज वेल, राइट. सो दैट्स हाउ आई ओपनड द कंपनी. और मैंने अभी जो कंपनी ग्रो भी करी है, देयर इज नो इन्वेस्टमेंट ऑफ एनीवन. किसी का कोई एंजल इन्वेस्टर नहीं है इस कंपनी में. आई हैव ओपनड इट फ्रॉम जीरो, right, and whatever growth we are having is completely the growth earned by the company in the faculties itself. There's no investment from any outsourced person or any agency into the company. So yeah, that was the reason. Yeah, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि of course it was the easy way for you to join your brother, but yeah, somewhere that you as you said कि entrepreneurship जो आपकी जो skill थी वो फिर flourish नहीं हो पाती. कहीं ना कहीं ये जो आप जब कोई भी चीज स्टार्ट करते हो तो you go through all these things. भले ही आप एज अ ट्रेनर बहुत अच्छे होंगे, लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप इज टोटली डिफरेंट गेम. आती है, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं, लेकिन वो आपको एज अ पर्सन ग्रो करता है. तो या दिस इज व्हाई आई आस्क्ड यू, क्योंकि आप ज्वाइन कर सकते थे, और लेकिन ये है कि आपने अभी जिस तरह से ग्रो किया है वो शायद तब आप वहां से नहीं हो पाते. तो यहाँ से हम फिर पहले तो मुझे ना सबसे पहले एक कंफ्यूजन है कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेट जिसका आप पढ़ाते हैं वो क्या होता है, लाइक how it helps, मुझे नहीं मालूम. ठीक है. ओके. सी, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स है, ये इंडिया के बाहर ना बहुत टाइम से चल रही है. मतलब इसको 50 इयर्स हो गए होंगे अभी तक. इंडिया ने अभी इसको एक्वायर करना स्टार्ट किया फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स. अब क्या होता है, जैसे मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया, ठीक है, अभी मैंने कंपनी ज्वाइन कर ली. अब उस कंपनी में एक सिर्फ इंजीनियरिंग से सारी चीजें नहीं हो सकती, ठीक है. सो आई हैव टू एनहांस माय स्किल सेट. नाउ स्किल सेट क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलूं कि रश्मि, दिस इज द प्रॉब्लम इन द कंपनी, हमारा जो टर्न अराउंड टाइम है इंजन प्रोड्यूस करने का बहुत ज्यादा है, लेट्स सॉल्व इट. तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से वो सॉल्व नहीं हो सकता, राइट. मैं उसमें क्या कर लूंगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग से. सो देयर आर सर्टेन टूल्स एंड टेक्निक्स, फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स, डेटा एनालिसिस, Lean Six Sigma. These are the methodologies which equips you with certain tools and techniques with the help of which you can make better decisions which are data driven. तो अगर मैं आपको बोलूं कि ठीक है, अभी आप और मैं डिस्कशन कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम है, मैंने आपसे बोला कि आप रूट कॉजेस बताओ मुझे, तो आप अपने ओपिनियन से मुझे 5-6 बता दोगे कि ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है. बट वो तो ओपिनियन है ना आपका, हो सकता है वो काम ना करे. बट अगर आपके ओपिनियन के साथ एक डेटा आएगा जिसको मैं स्टैटिस्टिकली एनालाइज करूंगा और फिर बोलूंगा कि नहीं, इन 10 में से यही रूट कॉज है, इसको सॉल्व करेंगे, टैट सही हो जाएगा, दैट वुड हैव बीन बेटर, राइट. सो कंपनीज आज के टाइम पे, इंडिया में तो एवरी कंपनी, बाहर तो था ही, एवरी कंपनी वांट्स पीपल विद सर्टेन स्किल सेट्स. चाहे वो, अगर आप कंप्यूटर साइंस में लोगे तो अजाइल स्क्रम होता है, राइट. अजाइल स्क्रम द वेरी डिटेल मेथोडोलॉजी जो आईटी कंपनीज में यूज होती है. डेटा साइंस, आर प्रोग्रामिंग, पाइथन, लीन सिक्स सिग्मा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, रूट कॉज एनालिसिस,
legal drafting. There's so many courses which are solely used to upskill your existing skill set. And then once you get these skills with the certification, then your chances of employability increases. ठीक, अभी ब्रिटानिया कंपनी है या कोई भी और कंपनी है, ब्रिटानिया है या रेडिसन है या इल्यूमिना है या कोई भी वर्ल्ड में एक्स वाई जेड कोई भी कंपनी होती है, वो अपनी कंपनी में ये टूल्स इंप्लीमेंट करते हैं. अभी कोई रिक्रूटमेंट के लिए सामने गया, स्टूडेंट बैठा है, उसके बाद वो स्किल सेट है जो वो अपनी कंपनी में इंप्लीमेंट करता है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो स्टूडेंट को ज्यादा पहले चूज कर लेगा कि ठीक है इसको तो ऑलरेडी आता है, लेट्स हायर दिस पर्सन. सो दीज प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस राइट नाउ ये एक नीड हो चुका है कि आपको लेने लेना है. जैसे पहले था ना हमारा कि अभी 4 साल आपका बीटेक, उसके बाद आपको पढ़ना है दिल्ली आके, तब आपका गेट निकलेगा. वैसे ही प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, अगर जॉब में आगे बढ़ना है तो भी, जॉब लेनी है तो भी, या अगर आपको कंपनी में इंप्लीमेंट करना है कुछ नया टूल नया टेक्निक तो भी, ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन उसमें हेल्प करते हैं. ओके, सो एक और चीज, जैसे एमबीए होता है नॉर्मल, हमारे जो एमबीए होते हैं उसमें ये चीजें होती हैं या फिर ये दिस इज ऑल डिफरेंट, कुछ और ही है? या ओके, फिर फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्स होता है? हाँ मतलब देखो, नॉर्मल कुछ नहीं, सेम है? No, I got a part, and that's a very good question actually. क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन होता है. See, there are certain set of tools जिनको हम क्वालिटी मैनेजमेंट कैटेगरी में डालते हैं, राइट, या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैटेगरी में डालते हैं. वो टूल्स एमबीए या किसी भी मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल है. ठीक है, एमबीए करके आपने मार्केटिंग में, फाइनेंस में, जिसमें भी किया हो, ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आर गोइंग फॉर पीएमपी. पीएमपी मींस प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल. इसकी वर्ल्ड का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन है, गिवन बाय पीएमआई. एंड अगर आपने एमबीए नहीं भी किया और पीएमपी हो ना, यू विल गेट अ जॉब, अ गुड जॉब, राइट. दैट इज व्हाट पीएमपी इज. तो एमबीए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, डिटेल में नहीं पढ़ते उसको. ठीक है, ये सर्टिफिकेशन आपको एक्सपर्ट बनाते हैं एक पर्टिकुलर डोमेन में. जैसे मैकेनिकल का बीटेक है या आईटी का बीटेक है, सीएस का है, तो आपने एक सेट ऑफ सिलेबस पढ़ा. अब मैं आपसे बोलूं कि यार रश्मि ठीक है, अभी ना अपने आर प्रोग्रामिंग करो, आप यहाँ पे एसक्यूएल करो आप स्पेसिफिकली, तो आपको उसके लिए एक स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन या स्पेसिफिक लर्निंग स्किल सेट चाहिए, राइट. तो ये सर्टिफिकेशन वो है जो आपको एक पर्टिकुलर डोमेन में एक्सेल कर देता है. आपने पढ़ा लीन सिस्टम का, मैंने भी पढ़ा है कॉलेज में, मेरे मेरे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ब्रांच थी उसके सिलेबस में था, बट मैंने उस डिटेल में नहीं पढ़ा कि इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है प्रैक्टिकली. दैट आई हैव लर्न व्हेन आई हैव लर्न लीन सिक्स सिग्मा फ्रॉम अ कंपनी, या सर्टिफिकेशन लिया मैंने. तो ये सर्टिफिकेशन केवल मैनेजमेंट के लिए नहीं है, ये इंजीनियर्स के लिए भी है. ये किसी भी एक्स वाई जेड, बी कॉम, एमबीए, पीजीडीएम, इंजीनियर, टेक्नीशियन, सबके लिए अगर आपको अपने करियर में ग्रो करना है तो ये सर्टिफिकेशन हेल्प करते हैं आपको, बिकॉज ये वर्ल्ड वाइड एक्नॉलेज सर्टिफिकेशन है और आपको बोलते हैं ना मास्टर ऑफ अ पर्टिकुलर डोमेन बना देते हैं कि इसका तो ये मास्टर है, he'll be able to do it. That's the help which we get. ओके, सो यानी कि दिस इज नॉट अबाउट द टेक्निकल, ये जितने भी कोर्सेज हैं ये टेक्निकल एस्पेक्ट से ज्यादा ह्यूमन को कंसिडर करके जो उनसे जो भी कंस्ट्रेंट्स होते हैं या उनसे जो भी प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करता है. ये हाँ, उसको एक्सटेंड करते हुए अगर मैं बोलूं कि ये आपकी लिमिटेड नॉलेज को एक्सपर्ट लेवल तक ले जाता है. दैट्स द होल पॉइंट. ठीक है, जैसे मैंने बोला कि लीन सिक्स सिग्मा मैंने भी पढ़ा है अपने कॉलेज में, बट मैं इंप्लीमेंट नहीं कर सकता उसको. यहां पे आके मैंने और कि अच्छा ऐसे इंप्लीमेंट होता है, ये टूल्स है, ये टेक्निक्स है, लाइक दैट. ओके, नहीं नहीं, मैं कोर्स की नहीं, मैं इन सारे कोर्सेज की बात कर रही हूँ. लाइक जितने भी कोर्सेज है, काइजन है, ये सारी चीजें मोस्टली ह्यूमंस को भी इन्वॉल्व करती है. उनकी वजह से लाइक कोई भी एक इंडस्ट्री है, कोई भी कहाँ पे भी काम हो रहा है, तो वहां पे आप टेक्निकल नॉलेज अपनी डाल सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम अराइज होती है व्हेन देयर आर सो मेनी पीपल. जब वो आते हैं एक जगह पे तो दे आर पीपल, उनकी कंस्ट्रेंट होते हैं, टाइम का कंस्ट्रेंट होता है. तो ये सारी चीजें अगर मैं समझूं तो ये सारी चीजें ये सॉल्व करती है. बिकॉज काइजन के बारे में अभी हमने एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें जो भी चीजें हमें मुझे पता चली तो मैं वहां से लेके आ रही हूँ कि देन ऑल दीज कोर्सेज आई थिंक तो फिर इसी से रिलेटेड हो गए. काइजन जो है, काइजन जो लीन सिक्स सिग्मा होता है ना, उसमें जो लीन है उसका एक टॉपिक है काइजन. काइजन एक जापानीज टर्म होता है जिसका इंग्लिश मीनिंग होता है कंटिन्यूअल इंप्रूवमेंट, राइट. कि आप अब देखो क्या है, अभी आप और मैं कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, कंपनी ने बोला कि मार्केट शेयर बढ़ाना है, ठीक है, हमें कंपनी का मार्केट रेवेन्यू बढ़ाना है, राइट. सो अब आप और मैं क्या करेंगे, अपनी अपनी बीटेक नॉलेज से हम लोग कुछ करेंगे, ठीक है, हर ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेते हैं. वी डोंट हैव अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच एग्जैक्टली हाउ वी आर गोइंग टू अचीव इट. काइजन क्या करेगा, काइजन एक अप्रोच बोलता है कि आप ये स्टेप
ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंप्लीमेंट करो कि पहले आप मार्केटिंग में पैसा लगाओ, उसके बाद आप अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ाओ, प्रोडक्शन टाइम कम करो, ऑटोमेटिकली ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपका मार्केट शेयर बढ़ जाएगा। ठीक है, सो काइजन एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच, एक नॉलेज दी मुझे काइजन आता है, मैं क्या करूंगा, मार्केट शेयर अचीव करने के लिए मैं काइजन का अप्रोच इंप्लीमेंट करूंगा कंपनी में। नहीं आता होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैं अपने नॉर्मल अप्रोच से काम करता रहूंगा। सो ये अप्रोच एक ह्यूमन की, विच यू स्पेसिफिकली मेंशन वेरी राइटली, उसकी एफिशिएंसी बढ़ाता है, जिसकी हेल्प से वो एक कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोसेस का इफेक्टिवनेस इंप्रूव कर देता है और कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेती है। सो इट इज लाइक दैट। लीन क्या, टोयोटा ने बनाया लीन, टोयोटा कंपनी जो है अपनी, राइट, उसका उसने ही इज अ फाउंडर ऑफ लीन मैनेजमेंट। तो लीन क्यों उसने इंट्रोड्यूस किया, उसने बोला कि ठीक है, मेरी कंपनी में वेस्टेज है, 8 घंटे लोग काम करते हैं, एफिशिएंट केवल 5 आवर्स 5 आवर्स के लिए, तो 3 आवर्स तो वेस्ट हो गया, टाइम इज द रिसोर्स। तो मेरी कंपनी में जितने भी रिसोर्स हैं, टाइम, मैन पावर, मशीन, इक्विपमेंट, टूल्स, जो भी है, वर्क प्लेस, उन सबका बेटर यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं। तो वर्ड आया लीन। लीन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। सो इसमें जो टूल्स पढ़ते हो आप, टेक्निक्स पढ़ते हो, वो आपको नॉलेज देती है कि कैसे आप उसको यूज कर सकते हो। ऐसी सिक्स सिग्मा स्टैटिस्टिकल अप्रोच होता है कि स्टैटिस्टिकली कैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक्सपर्टीज देखिए, बड़ा प्रोजेक्ट प्लानिंग से क्लोजर स्टेज तक कैसे करोगे आप, बाय मेंटेनिंग ऑल द रिस्क एंड द रिजर्व। सो ऐसे करके एजाइल भी है, बहुत सारी अप्रोचेस है, ये सारे जो सर्टिफिकेशन है विच वी प्रोवाइड एंड मेनी ऑफ द कंपनीज आर प्रोवाइडिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, इट इज फॉर गिविंग दैट एक्सपर्टीज टू द एम्प्लॉइज as well as to the students who are looking for a job in the companies. ग्रेट। तो यानी कि हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली कि वो कोर्सेस किस तरह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। Yeah. विद रिस्पेक्ट, विद इस पे रिस्पेक्ट नहीं करता कि आप अभी कहाँ पे हो। सो आई मीन टू से कि स्टूडेंट्स के लिए जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, लाइक दे आर इन टेक्निकल फील्ड, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस पे अगर आप थोड़ा बहुत बताएं कि प्रोफेशनल्स की बात हो गई, लाइक हमने काम कर लिया है, हम अब अपने आप को और अपस्किल करना चाहते हैं, बट एज द ह्यूमन इवॉल्व, आई थिंक वी हैव द कैपेसिटी टू लर्न एंड टू इवॉल्व एज अर्ली एज वी कैन। तो स्टूडेंट्स इस पे किस तरीके से होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट? सी इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो ये कि स्टूडेंट जब अपना कॉलेज कंप्लीट कर रहा है, राइट, उसको जॉब चाहिए, पहली बात, ठीक है। अभी वो सीएस से है तो वो जॉब ढूंढेगा कंप्यूटर साइंस में, मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में ढूंढेगा, राइट। सो अगर आप अपनी फील्ड पे एक्सपर्ट हो तो आपके लिए जॉब का इश्यू है नहीं। तो आप आईटी के हो, आपने आईटी कंपनी ज्वाइन करी, ये सर्टिफिकेशन उसकी हेल्प करेंगे उस कंपनी में भी एक्सेल करने के लिए, राइट। एंड देन इन योर रिज्यूमे एज वेल यू आर शोइंग दैट यू आर हैविंग एन एडिशनल एक्सपर्टीज, राइट, कि मैं आईटी से तो हूं। सी 5 स्टूडेंट्स गए इंटरव्यू में, राइट, पांचों आईटी इंजीनियर है, तो मैं क्यों किसी को चूज करूंगा? आईटी तो सारों ने सेम पढ़ा है कि कॉलेज के, right? So there has to be a skill set which differentiates an individual from the others. This certification is that skill set. That's point number one. Second point जो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप और मैं बहुत क्लियरली समझ सकते हैं इस चीज को, कि आज तो मैकेनिकल इंजीनियर भी जॉब कर रहा है, आईटी की कोडिंग कर रहा है ना, क्योंकि जॉब्स कम है हमारे पास और कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अभी जो टूल्स है, सर्टेन सेट ऑफ टूल्स है, जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, या अजाइल है, या डेटा साइंस है, डेटा एनालिटिक्स है, या लीन सिक्स सिग्मा है। सपोज लीन सिग्मा पिक कर लेता है, तो लीन सिक्स सिग्मा क्या करता है ना, आपकी जॉब का जो रेंज है उसको बहुत ब्रॉड कर देता है। लीन सिक्स सिग्मा एक्सपर्ट इज नॉट स्पेसिफिक टू मैकेनिकल और सीएस और सिविल. It is an expertise, it's a methodology which can be implemented in any industry, may it be IT, CS, mechanical, civil, no matter, healthcare, pharma industries, BPO sector, hospitality industries, कहीं भी लग सकता है. सब methodology, process improvement की एक methodology है. तो आप सोचो अगर आपके वो एक्सपर्टीज है तो आपकी जॉब रेंज कितनी बढ़ जाएगी. फिर आपको केवल मैकेनिकल में नहीं जाना है, आप कहीं पे भी जा सकते हो, क्योंकि आपके पास वो एक्सपर्टीज है जिसकी हेल्प से आप कंपनी की हेल्प कर सकते हो. सो these are the two major benefits which a student can gain out of it, right? That's what I said initially कि ये employability बढ़ा देता है. क्यों बढ़ा देता है? Because अब मेरे पास ऑप्शन मैकेनिकल वाले नहीं है, सारे हैं जहां पे लीन सिक्स सिग्मा इंप्लीमेंट हो सकता है. That's one of the major benefits, right? Great. तो इसका मतलब कि कंपनीज आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दीज काइंड ऑफ कैंडिडेट्स जिनको ये सारी चीजें पहले से एटलीस्ट बेसिक तो आती हो. Absolutely. In fact, if you see, we all are on LinkedIn right now. हम लोग सब LinkedIn पे होते हैं, ठीक है. अगर आप सिर्फ जॉब्स LinkedIn पे जाओ, जॉब्स पे क्लिक करो एंड जस्ट राइट लीन सिक्स सिग्मा, इन इंडिया ओनली आपको 1000 से ज्यादा जॉब दिख जाएंगी ना पर्टिकुलर प्लेस.
राइट। यूएस में आपको सिर्फ उस नाम, उस पर्टिकुलर टाइटल पे आपको 8,500 जॉब्स दिखती है। कनाडा में आपको दिखती है 3,800 जॉब, लाइक ये मैं कल का बता रहा हूँ सिनेरियो, राइट। और इंडिया में भी बहुत सारी जॉब्स है। तो सिर्फ एक टॉपिक पे, उस लीन सिक्स सिग्मा पे आप अगर और बाइफरकेट करोगे, ब्रेक करोगे उसको, तो लीन की जॉब्स अलग है, सिक्स सिग्मा की अलग है, उसके अंदर भी कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की अलग है, ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस। सो बहुत सारी जॉब्स है, और हर सेक्टर में, लाइक मैं अपने करियर में आई हैव वर्क विद हॉस्पिटैलिटी लाइक अ होटल इन यूएई, उसमें मैंने लीन इंप्लीमेंट किया है। मैंने आईटी सेक्टर में किया है, कनाडा यूएससी कंपनीज में। मैन्युफैक्चरिंग में किया है, मैकेनिकल कोर, मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन कंपनीज। बीपीओ में किया है, यही अपने दिल्ली के गुड़गांव के बीपीओ में, राइट। एंड आई हैव इंप्लीमेंटेड इन हेल्थ केयर। सो ये मेथोडोलॉजी है, कहीं भी फिट हो जाती है। ये एक एक सर्टिफिकेशन की बात कर रहा हूं मैं आपसे। इसके अलावा और भी जो सर्टिफिकेशन है वो आपको कहीं ना कहीं एक एडिशनल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जो आपकी हेल्प करता है जॉब लेने में भी, उस जॉब को अच्छे से करने में भी। या श्योर, मतलब अगर प्रोफेशनल्स, अगर कंपनीज इनको देख ही रही हैं तो ऑफ कोर्स दिस इज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो हम जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि इंडियन कॉलेज इंस्टीट्यूशन में इसका इसके बारे में कोई ज्यादा जानता नहीं है, या फिर इसके बारे में कोई ज्यादा सोचता नहीं है। तो हाउ एंड सो मैं पूछ रही हूँ ग्लोबल वर्सेस इंडिया, लाइक हम इस पे चले जाते हैं कि इस ओके, सर्टिफिकेशन का एज ए सेड कि बाहर आपने जो नंबर्स दिए, यानी कि बाहर जो है वो जॉब्स इसकी ज्यादा बहुत है। ज्यादा है। एंड बाहर ये टोयोटा बाहर की कंपनी है, अगर वो, क्योंकि दे आर वर्किंग लाइक बहुत पहले से, तो उनको ये प्रॉब्लम्स जल्दी फेस करने को मिली, तो उन्होंने इसका सोल्यूशन भी निकाल लिया। एंड सेम गोज विद अदर कंट्रीज ऑल्सो, क्योंकि उनके यहाँ जो फैक्ट्रीज है उन्होंने देखी होगी प्रॉब्लम्स ये। हम या अभी शायद उस लेवल पे जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो हमने हमारे यहाँ ये चीज नहीं पढ़ाई जाती। मुझे लगता है ऐसे हुआ होगा। तो अब जो डिफरेंस है इंडिया वर्सेस बाहर की कंपनीज एंड द इंस्टीट्यूट, इन दोनों में, तो ये चीजें कहाँ तक आती है, लाइक हम किस तरह से इसको अप्रोच कर रहे हैं। जो हम लोग का टाइम था कॉलेज वाला, राइट, उस टाइम पे ये इतना नॉलेज नहीं था। अभी हम्म। क्या है, एवरी कॉलेज स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू द मैनेजमेंट कॉलेज, दे आर अवेयर अबाउट इट, राइट। इनफैक्ट दे आर अपस्किलिंग देयर स्टूडेंट्स एज वेल ऑन दीज टॉपिक्स। ओके, तो वो अभी है। अब जब मैंने बोला कि इंडिया में एक्वायर हो रहा है, ये चीजें आ रही है अभी, तो मेरा पर्सपेक्टिव एक्चुअली कॉर्पोरेट से था। कॉलेजेस में ये सिलेबस में तो रहा है हमेशा से, बट डिटेल में नहीं रहा। उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए यू हैव टू लर्न अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। तो इंडियन कंपनीज ने, जैसे मैं कनाडा में था बहुत टाइम तक, तो कनाडा में क्या रहता है, कनाडा में एवरी कंपनी दे आर हैविंग वन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैनेजर, राइट। अब कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट मैनेजर वही होता है जिसके पास लीन सिक्स सिग्मा की एक्सपर्टीज है, राइट। तो अभी वहां पे हर कंपनी में एंटरप्राइज है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का, तो वो एम्प्लॉयज रखते हैं उसके, राइट। और वो ये पिछले 20-30 ईयर से कर रहे हैं। इंडिया ने पिछले कुछ सालों से स्टार्ट किया है, कुछ कंपनी बहुत टाइम से कर रही थी, बट ऑन अ लेवल ऑफ मास ये अभी स्टार्ट हुआ है इंडिया में, जब लोगों ने इसकी इंपॉर्टेंस और इससे जो बेनिफिट्स होते हैं वो अंडरस्टैंड करने स्टार्ट किए। तो अब क्या है, जो एमबीए स्टूडेंट्स भी है या जो इंजीनियर्स भी है, उनको ये समझ में आया कि यार ये तो कंपनीज मांग रही है, राइट। कंपनीज इंटरव्यू में पूछती है इस चीज के बारे में, या रेज्यूमे में देखती है। तो अब उन्होंने क्या किया, अपने स्टूडेंट्स को इक्विप करना स्टार्ट कर दिया। जैसे इंडिया में जो बड़े बड़े कॉलेजेस है, आईएम्स है, right? So they know about it. They are upskilling their students, or other colleges as well. They are also doing it. Zyadatar management colleges, even the university engineering colleges, they are actually upskilling their student, because now they have understood कि ये beneficial है. So the comparison, of course, बाहर बहुत टाइम से हो रहा है तो उनको ज्यादा पता है। इंडिया में अब स्टार्ट हो रहा है, तो आगे आने वाले जो 5-10 साल है, उसमें इन सर्टिफिकेशन की वजह से जॉब मिलना बहुत ज्यादा इजी भी होगा, और जॉब्स का नंबर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो दैट इज व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट, आई कैन थिंक। ओके ग्रेट। इंस्टीट्यूट्स में इसको पढ़ा, वही मैं मुझे पूछना था कि एमबीए में अगर ये इंडस्ट्री पार्ट है, तो एमबीए में तो इसको ऑलरेडी इनके कोर्सेज होते ही होंगे, या फिर ओके, बाहर प्रोफेसर बुलाते होंगे, या फिर इनके खुद के प्रोफेसर होते होंगे जो भी। तो या अगर इंजीनियरिंग में भी पढ़ा रहे हैं तो ये तो और भी अच्छी बात है, शुरू से ही तैयार कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। तो हमने इस पे काफी बात कर ली है कि किस तरह से ये बेनिफिशियल है एज अ स्टूडेंट टू ग्रो एंड एज अ प्रोफेशनल टू ग्रो। इफ देयर इज एनीथिंग लेफ्ट आपके साइड पे जो आपको लगता है, बिकॉज यू हैव मोर एक्सपीरियंस, कि आपने देखा है कि बाहर किस तरीके से अप्रोच होता है यहाँ पे, तो आपकी साइड से अगर कुछ चीजें बच गई हैं तो यू कैन टेल मी, एल्स वी विल मूव टुवर्ड्स द ऑनलाइन पार्ट, कि ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कितना इफेक्टिव है, लाइक हम लोग फिर दूसरे फेज पे चलते हैं। सी जस्ट I would like to conclude this whole this topic actually by saying कि
अभी is the right time to for students who are in the colleges to gain these expertise. तो colleges ने क्या किया हुआ है already, because there are so many colleges which are my clients, so I know this. They have in addition to their existing program, they have launched a new program known as upskill program, all right, और न्यू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. तो उसमें क्या रहता है, ये सारे कोर्सेज उस प्रोग्राम के अंदर अंदर जो है, दे ट्राई टू टीच स्टूडेंट. दे आर नॉट मेकिंग इट अ करिकुलम ऑफ देयर एक्जिस्टिंग सिलेबस. दे आर गिविंग इट एन एडिशनल अपस्किलिंग प्रोग्राम. सो दैट इज ऑफ कोर्स बेनिफिशियल. तो अगर कोई नहीं कर रहा है तो इट्स जस्ट माय सजेशन दैट प्लीज डू इट, बिकॉज आने वाले टाइम में ये आपकी बहुत हेल्प करने वाले हैं. अगर आप अभी नहीं करोगे तो बाद में आपको करना ही पड़ेगा. सो बेटर बी प्रिपेयर्ड, right from the beginning. So that's what I can say. This is must for everyone who is in industry and the student. Like अगर वो इस फेस पे, इनफैक्ट आपने कहा वो पीपीओ वगैरह हर जगह यूज हो रहा है, तो these are kind of a very must have skills then, क्योंकि आप कहीं ना कोई काम तो कर ही रहे हो. तो of course, and that's only one tool actually. जैसे तो हमने एक टूल पे बात करी है. ऐसे 30-40 टूल्स हैं जो आपके डोमेन के, जैसे डेटा साइंस है, वो अब मुझे अगर डेटा विजुलाइज करना है तो डेटा साइंस पढ़ूंगा. बट पॉइंट इज कि वो सब सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है उस कंपनी में जाने से पहले. जरूरी नहीं है आप लीन ही सीखो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही सीखो. वो जिस डोमेन में आपको जाना है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं यहाँ जाके काम करूंगा, उसके अकॉर्डिंगली अपना स्किल सेट चूज करो एंड टेक दैट लर्निंग फ्रॉम द कंपनीज इंस्टीट्यूट्स. दैट वुड बी बेटर. ग्रेट, ठीक है. तो हम इस पे से जल्दी से फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन पे, क्योंकि आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, एंड ऑनलाइन एजुकेशन पे अगर हम आए तो व्हाई यू चूज ऑनलाइन. आपने जितने भी अभी तक जितना भी आपका एक्सपीरियंस रहा है ऑफलाइन रहा है, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यू चूज करना पहले तो ये क्यों किया, एंड हाउ इट्स डिफरेंट फ्रॉम योर ट्रेडिशनल जो आपने पहले किया था, उससे कितना डिफरेंट है, लाइक हाउ यू आर डूइंग दिस. क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, मैं इसको और अच्छे से पूछ लेती हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका जितना भी चीजें मैंने देखा था कि आपके बहुत सारे कोर्सेज है एंड आप उस पर अच्छे से पढ़ा रहे हो, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में जो होता है ना इंटरेक्शन होता है स्टूडेंट्स का, वो बहुत ही अलग होता है. यू कैन, जैसे आपने कहा कि आपके जो आपके स्टूडेंट्स है वो प्रोफेशनल्स रहे हैं, वो हाईली एजुकेटेड बींग्स रहे हैं, तो वहां पे पढ़ाना एंड ऑनलाइन पढ़ाना ये टू डिफरेंट थिंग है. तो ऑनलाइन एजुकेशन एंड हाउ इफेक्टिव इज दिस with respect to the traditional offline. Okay, so पहली बात तो ये कि जो इंस्टीट्यूट है इट्स नॉट कंप्लीटली ऑनलाइन, राइट. डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट वी प्रोवाइड द ट्रेनिंग ऑनलाइन और ऑन साइट. अब जो कॉर्पोरेट्स हैं, राइट, मतलब पूरा कॉर्पोरेट से कोई कंपनी है, वो पूरा कंपनी अपने एम्प्लॉइज को पढ़ाना चाह रही है, राइट. सो वी प्रोवाइड ऑन साइट ट्रेनिंग बिकॉज उनको लगता है इंटरेक्शन इज बेटर, अंडरस्टैंडिंग इज बेटर व्हेन आई गो एंड आई टीच, राइट, अंडरस्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम. कोई कॉलेज है, उसको अपने 300-400 स्टूडेंट्स को पढ़वाना है, सो वी प्रोवाइड ऑन साइट. Now, coming to the online part, why it is important? पहला तो कोविड के बाद ये पूरा सिनेरियो चेंज हुआ है, right? We all have understood the importance of these things, so it's a must have, for every company, and every company is having it in India. Second, अब अगर कोई बल्क है 100 लोगों का या 50 का बैच है, तो I'll teach, right? अब एक इंडिविजुअल है, वो चेन्नई में है, एक इंडिविजुअल है वो यूएस में बैठा हुआ है, इंडिविजुअल जस्ट लाइक मी, राइट. व्हेन आई टुक अ ट्रेनिंग, तो मैं तो अकेला मैंने एक बैच ज्वाइन करा था, दैट्स इट. मेरे पास कोई 10-15 लोग नहीं है कि मैं ट्रेनर को बुला के सामने 1-to-1 पढ़वा सकूं. सो फॉर देम इट इज वेरी मच, सो ऑनलाइन ट्रेनिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैज अ बेटर रीच. आई कैन रीच टू एनीवन अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू ऑनलाइन मोर. सेकेंड, जो प्रोफेशनल्स हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ऑनलाइन बहुत फिजिबल होता है बिकॉज वो अपने कन्वीनियंट टाइम के अकॉर्डिंगली स्केड्यूल ब्लॉक करके पढ़ सकते हैं. ठीक है, डेफिनेटली, एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट इन दैट पर्टिकुलर पार्ट व्हेन यू सेड कि ट्रेडिशनल मेथड, वी कॉल इट एज ट्रेडिशनल, इट्स नॉट एक्चुअली ट्रेडिशनल, इट्स एन इवन एग्जिस्ट टुडे, दिस मेथड इज एग्जिस्टिंग, जो हमारा ऑन साइट जाके पढ़ाने का होता है या बैच बुला के होता है. अभी जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स है, इसमें इंडिया में हम बैच इन हाउस नहीं करते, मैं अपने ऑफिस में बुला के पढ़ा लूं, वो वाला सिनेरियो नहीं होता जो इंजीनियरिंग में होता था. वी सेंड ट्रेनर्स टू द क्लाइंट लोकेशन एंड दैट्स व्हाट वी डू इन ऑन साइट. ठीक है, तो ऑन साइट ऑफ कोर्स बेटर होता है बिकॉज उसमें इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है और फेस टू फेस इंटरेक्शन ऑलवेज बेटर, राइट. ऑनलाइन is better for a scenario where a person is an individual joining from different regions of the places, locations, and ऑनलाइन जो आप पढ़ाते हो तो आप एजुकेशन को बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव कर सकते हो. ठीक है, जैसे अगर मैं अपने पर्सनल अपना कंपनी के बारे में बताऊं, तो अगर आप सेल्फ टेस्ट रिकॉर्डेड वीडियोस जो है मेरे, सपोज एक तो 2 तरीके होता है, ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर लेड ट्रेनिंग जैसे आप और मैं कनेक्ट कर रहे हैं जूम पे, वी टीच पीपल, राइट. सेकंड कि मैंने अपने खुद ही पढ़ा के वीडियोस रिकॉर्ड करे और मैंने उनको डाल दिया.
अब उसको क्या होता है ना, मैं कॉलेजेस में फ्री में दे देता हूँ, राइट, क्या फ्री में पढ़ लो, बिकॉज सी आई कैन डू इट, मेरा एफर्ट था, इट्स ओके, इट्स माई माई लुकआउट, राइट। या मैंने केवल अगर मुझे अपनी कंपनी की कॉस्ट निकालनी है तो मैंने 1,000 रुपए का कॉस्ट कोर्स भेज दिया, जो कोर्स मार्केट में 20,000 का है, राइट। सो मेरा मोटो उससे फुलफिल हो जाता है कि ठीक है, आई नीड टू see, I need to remember why I started my company. So I started my company making sure that finance should not be the constraint. So I'm trying to find out those loopholes into an existing system by following which I can make these courses as much cost effective as possible. So online is giving me that, benefit. ऑन साइट मैं किसी को भेजूंगा तो पैसा लेगा ना अच्छा खासा, वो तो भाई जाने का, ट्रैवल का, एकोमोडेशन का, फिर खड़े होकर वहां पढ़ाना 7-8 दिन, जो वो ऑलरेडी काम कर रहा है वो छोड़ना, so many things. So yeah, online is having a lot of benefits. And but then both are, working hand in hand, the traditional and the online. That's what I can say. ओके, सो मतलब आई एम श्योर आपको रिव्यूज तो मिले होंगे, तो ऑनलाइन भी उतना इफेक्टिव रहता है लाइक लर्निंग? Absolutely. Effectiveness depends on the faculty, to be very honest, right? Doesn't matter you're training online or offline. On site is just कि जो corporate क्यों बुलाते हैं आपको, because वहां पे ना कई बार बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, तो वो ट्रेडिशनल मेथड से अटैच्ड है, राइट। दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल विद ऑनलाइन, सो इट्स बेटर कि उनको जाके ना वहां पे सामने खड़े होकर पढ़ाया जाए। दैट्स द होल पॉइंट। ओके, तो स्टूडेंट उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, लाइक द यंग स्टूडेंट्स कॉलेजेस में? लाइक यू सेड कि आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं कॉलेजेस में, तो वो उसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं, उसको उन्हें उन्हें कितना मजा, मतलब मजा नहीं, वो कितना समझ पा रहे हैं ये कह सकते हैं, लाइक बिकॉज दे आर स्टिल स्टूडेंट, उन्हें या नहीं पता है, तो वो कितना समझ पा रहे हैं। आप अगर आपने इस चीज पे मतलब अभी कोई रिव्यूज मिला हो या इस No, that's a great point actually, and it's really difficult. What you said is very difficult because बहुत सही बोला आपने कि स्टूडेंट वो अभी जॉब नहीं ज्वाइन किया उसने, तो उससे वो जो मैं अगर ऐसे मैं कोई ट्रेनर गया, उसने बोला कि ये टूल है, ये जॉब में ऐसे होता है, तो प्रोडक्शन टाइम कम हो जाता है। अब उसको नहीं पता प्रोडक्शन टाइम में क्या क्या स्टेप्स हैं, बिकॉज वो तो कॉलेज में उसे क्या पता हो, तो वो वहां पे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जो भी फैकल्टीज यहां से जाते हैं, कि जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो, सी what we do in at Omni Learn is कि हमारा जो कंटेंट होता है ना, दैट इज कस्टमाइज्ड, टेलर्ड कंटेंट होता है, वो क्लाइंट के एक्सपर्टीज को देख के बनता है, तो हर क्लाइंट के अलग है, ऐसा नहीं कि मास्टर क्लाइंट बना के आपके लिए यूज कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर कॉलेज में जाते हैं, सो वी ट्राई टू मेक श्योर कि हम एक तो बहुत बेसिक्स से चीजें उनको एक्सप्लेन करें, और जो एग्जाम्पल्स हम उसमें पुट करते हैं, रियल टाइम एग्जाम्पल्स, वो भी उनके एक्सपर्टीज लेवल के अकॉर्डिंग रखते हैं, कि उनको समझ में आए कि आगे फ्यूचर में जाके इसको ऐसे इंप्लीमेंट करा जाता है, राइट। सो स्टूडेंट्स, so far what I have received the feedback, they really like it, right, and they feel empowered when they gain such expertise, because अभी जैसे हम लोग करते हैं ना, बीटेक कर लिया फिर एमटेक भी कर लिया, तो लगेगा ना कि यार एमटेक है, 2 एजुकेशन है, वी आर गुड, ऐसा नहीं कि हमें जॉब नहीं मिलेगा, मिल जाएगा कहीं ना कहीं, राइट। ऐसे ही स्किल सेट जब आप स्टूडेंट को एक सही तरीके से कन्वे करते हो, तो वो एम्पावर फील करते हैं कि उनके पास एक एडिशनल स्किल सेट है जो इस समय वर्ल्ड में एक्नॉलेज्ड है, so they are perceiving it in a quite good manner. The whole point comes down to the faculty of the company which is providing the training, because how well you are making them understand the importance of the certification which they are learning. Secondly, how well you are conveying the entire content considering their expertise and their domain, that defines how well they'll understood and be able to implement further. ग्रेट, ठीक है। तो बस एक क्वेश्चन और है, लाइक देयर इज मेनी चैलेंजेस इन एडटेक इंडस्ट्री, जिसकी वजह से बहुत सारे जायंट्स दे आर फेसिंग दीज सिचुएशंस, कि True. आपको पता ही होगा। सो जितना मुझे समझ में आया, आई डोंट थिंक सो कि वो चीजें आपको अफेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज यू हैव अ टोटली डिफरेंट, बिकॉज यू रीचिंग स्टूडेंट्स और आप प्रोफेशनल्स, आपके बहुत जिन्हें आप केटर कर रहे हो, वो आपका My audience basically, whom I'm quoting, right? उनको आप केटर कर रहे हो, वो आपका बहुत बड़ा है, दे आर नॉट स्पेसिफिकली स्टूडेंट, ओनली स्टूडेंट्स। लेकिन स्टिल जैसे ऑनलाइन एजुकेशन में जो एक रिसेशन काइंड ऑफ चल रहा है, रिसेशन नहीं बोलती, लेकिन थोड़ा बहुत जो डाउनफॉल चल रहा है, इवन द ऑफलाइन में भी, जैसे हमने पता चला फिट्स ही बंद हो गई, तो उन सब का कहीं भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है आपके ओमनी लर्न पे या बिजनेस पे? See, it is not only happening with the company providing coaching for IIT या वगैरह की, या कॉलेज इंजीनियरिंग की कॉलेज कोचिंग है, एडटेक में भी डाउनफॉल है इस समय, बहुत जबरदस्त डाउनफॉल है, राइट। मेरी कंपनी में क्यों नहीं हो सकता, और ना हुआ है ना होगा कभी, उसका एक रीजन है कि बिफोर बिकमिंग अ बिजनेस ओनर आई वाज अ ट्रेनर, राइट। सो द एरिया विच आई एम इनटू, दैट्स माय एक्सपर्टीज। तो अगर कोई फैकल्टी मेरे साथ नहीं है, तो मैं अकेला पढ़ा सकता हूँ कहीं पे भी खड़े होकर, तो मैं तो रिस्क में वैसे भी नहीं आने वाला हूँ, राइट, क्योंकि मैं, दैट्स व्हाई आई एम कैपेबल ऑफ सेलिंग द कोर्स एट लोअर प्राइस, क्योंकि कोई मुझे क्वेश्चन नहीं करता उस पर कि भाई आई एम नॉट टेकिंग योर टाइम, आई
I'm investing my time into my students. I'm running my company. और मैं अपना कुछ पढ़ाया हुआ, अपना कुछ बनाया हुआ, मैं 500 रुपए, 50 रुपए या फ्री में दे सकता हूं, तो मुझे बोलेगा नहीं ना। और अगर 50 रुपए भी आ रहा है तो मेरी पॉकेट में जाता है, बिकॉज मुझे किसी को पे नहीं करना, राइट? दैट्स द मेजर डिफरेंस विच आई फील, एंड इट इज नॉट ओनली फॉर दिस एडटेक वर्ल्ड, इट इज फॉर एनी अदर वर्ल्ड. I believe, this is my opinion, right? People may have different opinions as well. I believe if you are starting a company and you are trying to become an entrepreneur, you should take that particular field जिसका एक्सपर्टीज आपके पास है. उससे आपकी डिपेंडेंसीज बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जहां आप डिपेंड होना स्टार्ट कर दोगे ना दूसरे पे, वहां पे फिर आप बाउंड हो जाओगे उसको अपना रेवेन्यू शेयर करने के लिए, राइट? और दैट्स हाउ द कंपनीज गेट इनटू द लॉसेस, क्योंकि अभी इतने सारे इंप्लॉइज हैं जिन पर डिपेंडेंट है हम, उसमें से कोई भी छोड़ रहा है या नहीं कर रहा है तो कंपनी के रेवेन्यू पे इंपैक्ट होता है, बिजनेस पे इंपैक्ट होता है. बट अगर मैं एक्सपर्टीज डू, आई नो इन एंड आउट एवरीथिंग, इट वोंट इंपैक्ट मी. So companies are facing this downfall today. It has nothing to do with online, offline, nothing. It's all about how well you are understanding your business and how well you are understanding your clients. सिर्फ पैसा कमाने के लिए आप क्लाइंट को कुछ भी दे दोगे तो वो वन टाइम पैसा होता है, सेकेंड टाइम रिपीटेड क्लाइंट्स नहीं आते उसमें, राइट? और कि आप कुछ भी बेच दो, लीगल भी बेच दो, और आप कम्युनिकेशन भी बेच दो, एक्सेल भी बेच रहे हो, सब बेच रहे हो, फैकल्टी आपके पास है नहीं, तो आप किसी को भी उठा के कॉलेज में आप पढ़ा दो. अभी जो होल कॉन्सेप्ट है ना लीन का या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का, उसमें एक आइडिया होता है स्टेक होल्डर एंगेजमेंट का. अब वो क्या होता है कि आपका जो स्टेक होल्डर है, जो क्लाइंट है, उसको आपको हर पॉइंट पे उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करके उसको डिलीवर करना है, राइट? बिजनेस, माय ओपिनियन अगेन, राइट, मे बी डिफरेंट फॉर अदर पीपल, कि ओनली दैट बिजनेस फ्लरिश जो अपने क्लाइंट्स को ऊपर रखता है, फिर अपने एम्प्लॉयज को रखता है और फिर खुद को रखता है. ठीक है, तो मैं अपने क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट सबसे पहले आती है, फिर मेरे एम्प्लॉयज. अगर मैंने किसी फैकल्टी को कहीं भेजा है कि आप वहां मुंबई चले जाओ, पढ़ा के आना है आपने, तो माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माई एम्प्लॉय, माई फैकल्टी, कि वो वहां जाए, उसको आराम से, कोई इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से आई एम गेटिंग दैट क्लाइंट. तो अगर मैं उनकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगा तो आई लूज माई बिजनेस, राइट? दीज आर फ्यू पॉइंट जिनकी वजह से अभी करंट एडटेक जो है प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस के, उनका डाउनफॉल आया हुआ है, राइट? दिस इज द रीजन विच आई फील इज द रीजन. ट्रेंड्स इन एजुकेशन, बट आई थिंक दिस इज नॉट फॉर यू, क्योंकि ट्रेंड आपका जो, तो मेरा मतलब कि जितने भी ट्रेंडिंग होते हैं एजुकेशन में, जो भी ट्रेंड, तो आई थिंक आपका इट्स मोर लाइक एवरग्रीन, क्योंकि ये ह्यूमन को कहीं ना कहीं कंसिडर कर रहा है. इट्स नॉट अबाउट द टेक्नोलॉजी, इट इज, आई थिंक, नहीं है ना, इसमें भी है. देखो क्या रहता है, इंडिया ने जब चीजें एक्वायर करना स्टार्ट किया ना, इन कोर्सेज को, इन सर्टिफिकेशंस को, नॉलेज को, तो वो अभी तो फेमस है इंडिया में क्योंकि बहुत चल रहा है. बट अभी 5 साल बाद चीजें अभी जैसे आप अगर लास्ट ईयर से ही देखोगे ना, तो जो कोर्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग का, वो एकदम से बूम पर आ गया है. ठीक है, कंसीडरिंग द करंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गोइंग ऑन, तो इसमें भी ट्रेंड है. अभी करंट एआई, एमएल, लीन सिक्स सिग्मा, पीएमपी, ये इंडिया में एक्सेल कर रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कुछ टाइम बाद खुद इसमें डाउन हो जाए. तो अगर आप ग्रोथ पे जाते हो तो जो कोर्स ह्यूमन स्किल्स पे डिपेंड करते हैं वो तो एवरग्रीन रहेंगे, राइट? बट जो टूल है, जैसे कंटेंट था, राइट, तो पहले आप और मैं बना रहे थे, अब चैट जीपीटी बना रहा है हमारा कंटेंट, राइट? उन चीजों को तो अगर मैं ह्यूमन हुआ, मुझे चैट जीपीटी अच्छे से यूज करना आता है, तो मेरे लिए जॉब है, राइट? सो देयर इज अ ट्रेंड गोइंग ऑन, मोस्टली ऑफ द ऑटोमेशन, रोबोटिक्स, the process improvement methodologies. However, after 10-15 years it will also come down, वो आएगा वापस बैक पे. However, AI will boom. AI हमेशा बूम पे, अभी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है, आगे भी करता रहेगा, बिकॉज ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच इज अबाउट टू कम, राइट? 4.0 तो खत्म हो गया, अब नेक्स्ट वाला जो स्टार्ट हो रहा है वो डेफिनेटली इट इज अबाउट AI ML. तो अब हम स्टार्टअप बिल्डिंग पे चलते हैं. स्टार्टअप बिल्डिंग यानी कि आपने अपना स्टार्टअप किस तरह से बिल्ड किया है, इस पे हम थोड़ा बहुत बात करेंगे, इंक्लूडिंग द विजन, बिकॉज एज यू सेड कि यू हैव, यू नो, आपका बेस है, आपको अंडरस्टैंड है, क्योंकि आपने, है ना, दिस इज अ प्लस पॉइंट विद यू कि आप पढ़ाते भी हैं और आप वही चीज पढ़ा रहे हैं जिसपे आप काम कर रहे हैं, लाइक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो गया, बाकी सारी चीजें, ये आपको कहीं ना कहीं खुद भी हेल्प कर दे रही है आपके एंटरप्रेन्योरशिप में और आपके बिजनेस जो आप बिल्ड कर रहे हो उसमें. तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन का विजन आपने बता दिया है, प्रॉब्लम आप क्या सॉल्व कर रहे हो वो भी आपने बता दिया है, लेकिन आपने इसको शुरू किस तरह से किया था, लाइक आपने जब सोचा था, तो हाउ, थोड़ा बहुत स्टेप्स अगर आप बता दो कि हाउ यू डिड दैट, कि अच्छा इस तरीके से मैं करता हूँ, कि आपकी एजुकेशन कहीं ना कहीं इसमें हेल्प की थी, जो जो चीज आप पढ़ाते हो. श्योर. सी, कंपनी स्टार्ट जब करी थी, राइट, सो आई एम एन एक्सपर्ट ऑफ फ्यू मेथोडोलॉजीज, फ्यू सर्टिफिकेशंस, राइट? तो अभी कंपनी स्टार्ट तो मैंने उसी से करी थी,
जो मेरे सर्टिफिकेशन, जो मेरे एक्सपर्टीज है, बिकॉज आई वाज हैविंग अ नेटवर्क, अ ह्यूज नेटवर्क ऑफ माय क्लाइंट एट अ पर्टिकुलर टाइम. स्टार्ट करना इज समथिंग, व्हेन आप बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करो और एग्जैक्टली वो जो आपको आता हो, राइट. अपना कंपनी रजिस्टर कराना, बेसिक लोगों की, जितना कम पैसे में आप कर सकते हो, दैट्स हाउ यू हैव टू स्टार्ट योर कंपनी. एंड देयर आफ्टर स्टार्ट मार्केटिंग विद माय ओन क्लाइंट्स. तो मेरे क्लाइंट पहले से थे, राइट. तो मैंने सोशल मीडिया पे, लिंक्डइन पे, राइट, फेसबुक पे या इंस्टा पे, आई स्टार्टेड pitching up for my courses. Now, since because I have been providing this training for quite a time, and my existing clients, they know my quality of the training I provide, right? So I got approached. So most of the clients जो मेरे पास पहले साल में आए थे, उनको मैंने अप्रोच नहीं किया था. दे अप्रोच मी, राइट, बिकॉज दे नो मी. सो उनको था कि इनसे अगर इससे पढ़वा था, तो उन्होंने खुद से अप्रोच किया. दैट्स हाउ द कंपनी स्टार्टेड ग्रोइंग. ठीक है, कि क्योंकि कोई भी कंपनी को ग्रो करने के लिए वी नीड मनी, सम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, राइट. अभी मैं जो खुद पढ़ा रहा हूं, मैं तो पढ़ा सकता हूं, बट केवल मेरे जो कोर्सेज है वो तो 5-6 कोर्सेज है. आई कैन नॉट ट्रेन ऑन ऑल द कोर्सेज, जो बहुत सारे कोर्सेज है, एसक्यूएल, जावा, .NET, लैंग्वेजेस, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच लैंग्वेजेस, डेटा साइंस टूल्स, आर प्रोग्रामिंग, अजाइल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है. तो सब तो मैं नहीं पढ़ा सकता. आई नीड टू हायर ट्रेनर्स फॉर इट, राइट. सो इनिशियली, इन द इनिशियल फर्स्ट ईयर, मैंने अपना ग्रोथ जो किया वो अपने कोर्सेज से किया. मैंने ज्यादा कोर्सेज, पैसा कमाने के लिए कोर्सेज बेचना स्टार्ट नहीं किया कि मैं सब बेच दूं. आई स्टार्टेड विद माय ओन एक्सपर्टीज. फर्स्ट आई प्रूव द क्वालिटी ऑफ द कंपनी टू माय क्लाइंट. देयर आफ्टर, जब मुझे लग गया कि ठीक है, नाउ आई एम हैविंग अ सॉलिड बेस in terms of the clientele as well as the revenue. Now what I'll do is I'll start exploring the other options, and then I started collaborating with the universities, colleges, and started offering multiple courses, right. Then I started hiring the trainers. So I'm having a network of more than 1,000 trainers right now across the world, right. So उनको अभी मुझे अगर कहीं से ट्रेनिंग आती है तो मुझे पता है, मुझे सिर्फ एक कॉल करना है अपनी टीम को, they'll allocate the trainer. मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली सब हो जाएगा, चाहे वो इंडिया में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, जापान में हो, यूएस में हो, कनाडा में हो, कहीं पर भी हो. इनफैक्ट इंडिया में भी अगर वो मुंबई में है तो हमारे पास मुंबई का ट्रेनर है, जयपुर में होगा तो जयपुर का ट्रेनर होगा, यूपी में है तो मैं खुद ही यूपी से हूँ, दिल्ली में है तो दिल्ली का ट्रेनर है. सो वी आर हैविंग वी आई फ्रेम दैट नेटवर्क. बट स्टार्टिंग से ऐसा नहीं था. बोलते ना, स्टेप बाय स्टेप ऑटोमेटिकली आप ग्रो करते जाते हो. दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी एज वेल, जस्ट लाइक एनी अदर कंपनी. और ट्रस्ट मी ऑन दिस पार्ट, रश्मि, कोई भी कंपनी एकदम से बड़ी नहीं बनती, बनी नहीं सकती, राइट. क्योंकि मुझे भी बहुत चीजें नहीं पता थी पहले कि ऐसे भी कर सकते हैं अच्छा कर ट्रेनिंग को. तो स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाई, तो अब अपनी जेब से पैसा लगा के बनाना है, तो बहुत सिंपल तरीके से बनाया मैंने. फिर कोई अच्छी वेबसाइट नहीं थी, धीरे धीरे करके उसको रिफाइन करते गए. आज भी रिफाइन होती है वो, हर दूसरे दिन में रिफाइन होती है टू मेक इट बेटर. सो कुछ मिलते हैं, उससे आप ग्रैप्स करते हो इन्फॉर्मेशन और अपने इंप्लीमेंट करके आप बढ़ाते हो. दैट्स हाउ द कंपनी वर्क्स, एंड दैट्स हाउ माय कंपनी आल्सो ग्रो. ग्रेट. तो आपने स्टार्ट कब किया था ओमनीलाइन? ये तो मैंने पूछा ही नहीं. ओके, आई स्टार्टेड इन 2022. 2022. मतलब ऑफिशियली उससे पहले स्टार्ट कर दिया था मैंने, बट रजिस्टर नहीं करी थी कंपनी, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग, गिविंग फ्री कोर्सेज काइंड ऑफ थिंग. बट प्रॉपरली 2022 में स्टार्ट किया था कंपनी. नाउ इट्स लाइक ऑलमोस्ट 3 years नाउ. सो जो आपके ट्रेनर्स हैं, आप उनको पहले अपने अंडर ट्रेन करते हैं, जो भी अक्रॉस द वर्ल्ड है, उनको आप ऑनलाइन ट्रेन करते हो या फिर फिजिकली ट्रेन करते हो, या फिर किसी भी तरीके से आप उन्हें ट्रेन करते हो, देन आप फिर उनको अपने क्लाइंट्स के पास भेजते हो? इस तरह से होता है? जी, इसमें 2 एस्पेक्ट्स होते हैं. एक तो ये कि अगर आप ट्रेनर को हायर कर रहे हो पहले, तो आप काफी एक्सपीरियंस ट्रेनर को हायर करते हो जो कंपनी में ऑलरेडी काफी टाइम से काम कर रहा हो. क्योंकि ये फ्रीलांसर है तो कोई बाउंड नहीं होता कि वो किसी और कंपनी के साथ काम नहीं कर सकता है. तो मेरी कंपनी के साथ काम कर रहा है, वो 10 और सेम कंपनी के साथ काम कर सकता है. इट्स फाइन, राइट. बस क्लाइंटेल जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं होना चाहिए. तो पहला तो ये कि हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास जो ट्रेनर आए वो एक्सपीरियंस हो, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि वो 15 साल से इस पे काम कर रहा है, राइट. दैट इज वन पार्ट. In terms of that, he should not be nervous when he's teaching, और उसका जो communication हो that should be better. That's first part, right? अगर वो होता है तो बढ़िया है. कॉर्पोरेट्स को, जो बड़े क्लाइंट्स है, उनको हम वही बेचता है, राइट. सेकंड, मतलब ये मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है, बाकी कंपनीज में ऐसा नहीं चलता है. What I do is I can hire a person with zero experience. मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. आई वॉन्ट कि जो फैकल्टी है वो जो पढ़ाना चाह रहा है उसको तो नॉलेज होनी चाहिए उसकी, उसको डिलीवर कर पाए. इफ यू आर कम्युनिकेटिंग वेल, माई क्लाइंट इज हैप्पी, आई डोंट माइंड. आप कॉलेज में पढ़ा लो आके, मुझे कोई इशू नहीं है उससे. मतलब आई एम नॉट गोना जज दैट पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेशन दैट पर्सन इज हैविंग. जैसे मैंने सर्टिफिकेशन जो वर्ल्ड के रेगुलेटरी बॉडीज है उनसे लिए, राइट, काफी टाइम के बाद.
अब इंस्टीट्यूट तो बहुत सारे बेच रहे हैं, मेरा इंस्टीट्यूट भी बेच रहा है सर्टिफिकेशन, मैं भी दे रहा हूँ सर्टिफिकेशन। आप कहीं से कुछ भी लेके आते हो, नहीं भी लेके आते हो, आई एम गुड विद इट टिल द टाइम माई क्लाइंट इज हैप्पी। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं काम करता हूँ बेसिकली। तो ट्रेनर हर तरीके के हैं, अच्छी क्वालिटी के हैं। क्वालिटी इज अ मेजर फैक्टर जो हम रखते हैं कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब चीजें सेकेंडरी होती है, उसका फाइंड नहीं है। एंड इट कम्स बिकॉज वी पे वेरी गुड to our faculties, right? So sometimes I have to keep a lower a profit share because I want to pay high to my faculty. So, and I'm fine with it. Ultimately, like I said, na client, employees, and then me. So that is how I work. ग्रेट या। तो ये अलग से क्वेश्चन है कि आपको ये लगता है कि जिस तरह से पहले लोग हायर करते थे वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे, लाइक विद टाइम पीपल आर नॉट, मतलब वो डिग्री वगैरह नहीं देख रहे, दे आर जस्ट सेइंग कि टैलेंट है, स्किल है, इसके हिसाब से चीजें हो रही हैं एंड दे आर, मतलब उस तरीके से आप एम्प्लॉय हायर कर रहे हो? See, वो देखिए बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है, कि आपको सॉरी अगर किसी कंपनी में आप जा रहे हो, यू आर वर्किंग एंड यू वांट टू वर्क, सो of course from which college you are coming, it makes a difference even today in India specifically, right? And what's your background, it matters. However, the competition has become so high, इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया इंडिया में कि एक जॉब के लिए इतने लोग आते हैं। जैसे मैंने एक पोस्ट डाला था लिंक्डइन पे फॉर अ जॉब ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ट्रेनर इन इंडिया। In 2 hours, I got 150 applications across the world from the highly experienced people, 20 years of experience, 25 years of experience for one single job, right? उसके अलावा मेरे वेबसाइट पे अलग से आ रहे थे काफी सारे रिज्यूमे, सीवी। पॉइंट इज वो कंपटीशन इतना हाई है कि हायरिंग स्टाइल हैज टू बी चेंज, यू हैव टू चेंज इट, यू हैव टू मेक इट मोर कॉन्क्रीट बेसिकली, राइट? सो दैट यू विल बी एबल टू फिल्टर आउट, राइट? तो इसीलिए ये जो सर्टिफिकेशन की हम बात भी कर रहे हैं, दिस होल पॉडकास्ट इज एक्चुअली अबाउट दैट। वो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज उस बहुत बड़े क्राउड में आपको डिफरेंशिएट कैसे। अब मेरे पास अगर 1000 रिज्यूमे, मैं सारे को देखूंगा ही नहीं ना, मैं एक सॉफ्टवेयर में डालूंगा, मैं चेक करूंगा किसके पास रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेशन या एक्सपर्टीज है, तो मेरा सॉफ्टवेयर मुझे बताएगा कि उन 1000 में से ये 50 है जिनके पास है। सो मैंने वो देखे ही नहीं, 950 रेज्यूमेस मैंने देखे ही नहीं, राइट? सो हायरिंग प्रोसेस डेफिनेटली थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है। कई बार एक्सपर्टीज अच्छा है, आपने रिज्यूमे अच्छा बिल्ड नहीं किया तो भी आप नहीं जा पाओगे कंपनी में, राइट? बिकॉज मैं तो आपसे मिला नहीं, मैं तो आपको रिज्यूमे पे जज कर रहा हूं पूरा कंप्लीटली, राइट? तो यस, यू आर राइट, हायरिंग प्रोसेस हैज चेंज्ड अ लॉट, बट एंड इट हैज बिकम डिफिकल्ट। पहले इजी था, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और आजकल रेफरेंसेस भी बहुत ज्यादा काम करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज एक जॉब निकालने पे 15, 20, 50 लोग आ रहे हैं हिसाब छोटे से से पोस्ट पे। मतलब तो ऑर्गेनाइजेशंस में तो तब भी डिफिकल्टी थी। हाँ, तभी भी डिफिकल्ट ही, करेक्ट, हाँ सही बोल रहे हो आप, अभी भी है, उन्होंने स्ट्रक्चर कर दिया है बस, और कुछ नहीं किया। बट हाँ ये है कि अब मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी इजी हो गई बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, बिकॉज नाउ यू कैन, मतलब नॉट इन एवरी फील्ड बट हाँ कई सारी फील्ड्स में जहाँ आप अपने आप को दिखा सकते हो, अपनी स्किल्स दिखा सकते हो कि दैट आई हैव दिस काइंड ऑफ स्किल्स, तो मे बी उस वजह से थोड़ी इजी हो गई है, बट ये हर जगह नहीं हुआ है ऑफ कोर्स। So that's an application. What you are saying, वो applying है, right? What I was saying was the recruitment. So आपने applying process तो easy हुआ है, true, बहुत easy है, right? आपने LinkedIn पे डाला पोस्ट, मैंने देखा कि यार ये तो बहुत पोस्ट डाल रहा है, इसको उठा लेते हैं, अब अच्छा बंदा होगा, अपनी कंपनी में काम करेगा। बट जब मैं उसको सेलेक्ट कर रहा हूँ उस टाइम पे, जब मैं उसको इवेल्युएट करूंगा ना, दैट प्रोसीजर हैज बिकम अ बिट स्ट्रिंजेंट एंड अ बिट मोर डिफिकल्ट फ्रॉम द पार्टिसिपेंट्स पर्सपेक्टिव, कि उसको इतना आसानी से जॉब नहीं मिलने वाली मेरे पास, क्योंकि मेरे पास और भी ऐसे हैं जो एक्सपर्टीज है। बड़ा एप्लीकेशन प्रोसेस तो बहुत इजी हो गया है, बहुत ही ज्यादा इजी हो चुका है, लाइक आप, दैट्स व्हाई वी आर हैविंग अ दैट मच नेटवर्क ऑफ ट्रेनर्स ना, कि आप एक पोस्ट डालो, इतने सारे ट्रेनर्स आ जाते हैं आपके पास। इट हैज बिकम वेरी इजी, पहले तो था नहीं ऐसा। या पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट हाँ आई थिंक विद टाइम लोग अपनी स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो स्किल्स बढ़ा रहे हैं तो ऑफ कोर्स स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो कई लोग स्किल्स बढ़ा रहे हैं, सेम स्किल्स है तो डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ फैक्टर होना चाहिए वेयर जहाँ पे ये सारी चीजें काम करती है। ग्रेट। या तो इसमें कोई चैलेंज आपको फेस करना पड़ा आपकी खुद के बिजनेस को सेटअप करने के लिए? एनी चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, एनीवन कैन लर्न फ्रॉम दैट। जो चैलेंजेस है आप पहले इंडिया का बता दीजिए, देन वी विल मूव टुवर्ड्स ग्लोबल। जी, चैलेंजेस तो ऑफ कोर्स आते हैं, बिकॉज आप जब इनिशियली पहली बात तो कंपनी, केवल लोगों को लगता है कि यार कंपनी खोल दी इन्होंने, चल रही है, तो ऐसा नहीं होता कि कंपनी, जैसे आप कोई भी कंपनी अगर बहुत
कोई इंसान ओपन करना चाह रहा है, समवन वांट्स टू ओपन अप अ कंपनी, सो इट्स नॉट लाइक कि ठीक है आज मैंने सोचा कल मैं कंपनी खोल लूंगा, ऐसा नहीं होता, राइट? यू हैव टू रजिस्टर योर कंपनी ऑफिशियली, डॉक्यूमेंटेशन, यू नीड अ कंपनी सेक्रेटरी टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग सो दैट यू गेट रजिस्टर्ड इनटू द इंडियन गवर्नमेंट पोर्टल। तो दैट्स हाउ द कंपनी स्टार्ट बेसिकली, अगर आप लॉजिक पे जाओगे इनिशियली, ठीक है। इंडिया में सेटअप करना डिफिकल्ट नहीं है बिकॉज वी आर इंडियंस ऑफ कोर्स, सो वी नो इन एंड आउट एवरीथिंग। सो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी भी जगह से थोड़ा सा, अगर एंड दैट्स व्हाट, अगर आप खुद ही एक्सपर्ट हो उस डोमेन की, किसी कंपनी आप खोल रहे हो, तो इन्वेस्टमेंट कम लगती है, सिर्फ उन चीजों में लगती है जिसमें जो फिक्स चार्जेस है, तो देने देने आपने, ठीक है। तो चैलेंजेस एज सच जो मैंने फेस किए इंडिया में, वो कंपनी स्टार्ट करने में तो कुछ ज्यादा नहीं थे। अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी बेसिक्स आपने पैसा रखा हुआ है, आप कर सकते हो, कंपनी रजिस्टर्ड स्टार्ट कर सकते हो। मेन जो आपका आता है कि आपको राइट नेटवर्क में अपनी कंपनी को पब्लिश करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर उसको नहीं करोगे ओवर पीरियड ऑफ टाइम तो यू लूज, बिकॉज कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि अगर आज मैं क्लाइंट से बात करूं और मैं उसको कन्वर्ट नहीं कर पाया तो कल नहीं रहेगा, वो 100% किसी और का चला जाएगा। so many companies like that, so that's a major challenge for in this edtech world कि आपको you need people, so right, who can take care of the clients quite well, right, expertise। और चैलेंज ये आता है कि इतना हैवी कंपटीशन है कि क्लाइंट आपको अगर जज कर रहे हैं तो उसके मल्टीपल पैरामीटर्स हैं, आपका कॉस्ट, आपका ट्रेनर, आपका बात करने का तरीका, व्हाट फैसिलिटीज यू आर प्रोवाइडिंग, राइट। तो अगर कोई कंपनी 20 साल से है तो उसने तो बहुत रेवेन्यू कमा लिया, तो वो 100 चीजें प्रोवाइड करता है, लिख के देगा, प्लेसमेंट भी दे रहे हम, आई कैन नॉट प्रोवाइड प्लेसमेंट, राइट, मैं कैसे दूंगा प्लेसमेंट, राइट, आई कैन नॉट दे, वो भी नहीं रहा है, लिख दिया उसने, दे तक प्लेसमेंट कौन दे सकता है, नोबडी कैन गिव द प्लेसमेंट, राइट। सो आप बस एक एक ऑब्जेक्टिव होता है दिखाने का कि प्लेसमेंट, हमारा प्लेसमेंट सेल है, आपको हेल्प करेगा, कुछ नहीं होता, राइट। तो चैलेंजेस नेटवर्क ग्रो करने के होते हैं, जो बहुत बड़े चैलेंजेस है, और एवरीवन फेसेस इट इनिशियली। तो अगर पैसा है तो 10 लोगों को हायर कर लो, वो कर लेंगे आपका काम, पैसा नहीं है तो आपको खुद करना पड़ेगा, राइट। इसीलिए मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप खुद एक्सपर्ट हो और आप बहुत टाइम से उसमें काम कर रहे हो तो आपके पास एक नेटवर्क प्री डिफाइंड होता है, तो वो पब्लिशिंग पार्ट आपका थोड़ा इजी हो जाता है, तो मेरा वहां से इजी हो गया। इसके अलावा कोई चैलेंज नहीं होता कंपनी में। अगर मोस्टली अगर आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हो तो आई बिलीव वन शुड कीप इट एज वर्चुअल एज पॉसिबल टू रिड्यूस द ओवरहेड द फिक्स एक्सपेंसेस। आप जैसे मैं हूं ना, मैंने बहुत ज्यादा ऑफिसेस नहीं खोल रखे कि मैं हर दूसरे सिटी में ऑफिस खोलने लग जाऊं अपना, मेरे तो वर्चुअल है, मैं दिल्ली से सारा ऑपरेट कर सकता हूं, मैं क्यों जाऊं हर जगह, राइट। तो मैं मेरा मेरा जो पैसा है वो मैं लगाता हूं अपने क्वालिटी में रादर देन अपने ऑफिसेस में, दैट्स फर्स्ट पार्ट, ठीक है। और जो अपना मेरी मार्केटिंग होती है उस पर, बिकॉज आपका ग्लोबली भी है, अभी तक हमने ग्लोबली इस पे बात नहीं की कि आपका ग्लोबली किस तरह से रिस्पॉन्स हो रहा है या फिर आपने वहां पे किस तरीके से काम किया, ग्लोबल आपने सेटअप कैसे किया, एंड देन चैलेंजेस थे, और वहां के लोग इंडियन एजुकेशन मतलब इंडियन एजुकेशन को कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, लाइक उन्हें किस तरह से लग रहा है, ठीक है ठीक है। जब इंडिया के बाहर आप कंपनी खोलते हो तो चैलेंजेस बहुत होते हैं ऑफ कोर्स, बिकॉज एक तो आपके लिए वो चीज नहीं है, राइट। हम लोग व्हेन वी गो आउटसाइड इंडिया इज वेरी न्यू फॉर अस। सो जब कनाडा में हमने अपना एस्टैब्लिशमेंट किया, सो वहां पे उसके गवर्नमेंट को समझना, उसके रूल्स को समझना, वहां पे एस्टेब्लिश करना, दैट इज द फर्स्ट चैलेंज विच वी फेस, राइट। सो इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू गो थ्रू द एंटायर लीगल प्रोसीजर। वहां पे आप रूल्स बेंड भी नहीं कर सकते, राइट। तो वहां पे आपके कॉन्टैक्ट्स वगैरह कुछ काम नहीं आते, वो तो उनका एक सिंपल प्रोसीजर है, आप उसमें आते हो, खोलो, नहीं तो नहीं खोलोगे। सेकेंड, इंडिया में क्या है ना, और इसके लिए आई रियली प्रेज आवर कंट्री, कि इंडिया में जो ग्रोथ हुआ है ऑनलाइन मोड में ना, वो बहुत ही ज्यादा स्पीड अप से तरीके से हुआ है। तो हम लोग ना बहुत हमारे लिए बहुत इजी है वर्चुअल चीजें करना, जैसे पेमेंट होते हैं, यूपीआई पेमेंट हमारे लिए बहुत इजी है। बाहर क्या है ना, जो कैनेडियन जनता है उसको अभी भी ट्रेनिंग चाहिए सामने बिठा के, वो ऑनलाइन पे नहीं जाते, उनको है कि हमें अब यहीं पढ़ाओ बुला के, नहीं तो वो आपके ऑफिस में आके पढ़ लेंगे। सो दे आर हैविंग दैट माइंडसेट। सो इट्स नॉट ओनली अबाउट कनाडा, यूएस में भी यूएस तो बहुत बड़ा मार्केट है, सो कनाडा से यूएस रीच करना बहुत आसान है मेरे लिए। तो यूएस का मार्केट में भी चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि वो जो आपने फैक्टर बोला ना इंडियन वाला, वो बहुत बड़ा फैक्टर है यूएस में, कि व्हाई शुड बी गेट ट्रेन फ्रॉम एन इंडियन, राइट। सो आप उसके लिए क्या आप जवाब दोगे? तो मुझे चैलेंज बहुत ज्यादा क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने अपने 5000 से ज्यादा जो सेशन लिए हैं उसमें से 15 से 2000 सेशन मेरे यूएस क्लाइंट्स को ही थे, राइट। सो अपने आप को वहां एज एन इंडिविजुअल सेटअप किया मैंने, कंपनी को सेटअप नहीं किया। तो मेरा अप्रोच हमेशा ये रहा है, मैंने अपने आप को, बिकॉज लोग मुझे जानते थे, मेरी कंपनी को नहीं जानते थे, तो मैंने खुद को प्रमोट करा, राइट। उसके साथ कंपनी को लेकर चला हूं मैं, तो मेरा बेनिफिट हुआ मुझे वो चैलेंज। अगर मैं सिर्फ कंपनी बोलता ना कि ओमनीलन से पढ़ लो, कोई नहीं आता, जानते नहीं हो,
मैं बोल रहा हूँ मैं पढ़ाऊंगा आपको, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आप मेरे से पढ़ो। सो दे से कि ठीक है आप, बिकॉज वी नो यू, वी कैन फर्स्ट यू ऑन दैट पार्ट। सो दैट वाज अ मेजर चैलेंज इन यूएस, इन कनाडा। और ऑफ कोर्स वहां इन्वेस्टमेंट लगती है यार, वहां पे आपको बंदा भी रखना पड़ता है जो आपको ऑफिस देख ले या आपकी मार्केटिंग कर ले, राइट, या क्लाइंट को डील कर ले, बिकॉज मैं रेगुलरली वहां पे हूं नहीं। एंड देयर वी आर हैविंग पीपल ओवर हियर, वी आर हैविंग अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, बीडीएम, वो वहां पे सारा काम देखते हैं। एंड आई आल्सो यूज्ड टू ट्रैवल क्वाइट अ लॉट, टू एंड फ्रो करता रहता हूं मैं, छोड़ नहीं सकते उसको। बट या दैट्स वन बेनिफिट। और अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो कनाडा मेरे लिए इजी इसलिए रहा बिकॉज आई एम कैनेडियन पीआर, राइट। सो मैं कनाडा का परमानेंट रेजिडेंट हूँ, सो आई गेट ऑल द बेनिफिट जो सिटीजन को मिलता है, राइट। सो मैं ऑफ कोर्स आई हैवंट टेकन द पासपोर्ट ऑफ कनाडा, बट मेरे लिए वहां पे कंपनी खोलना, प्रॉपर्टी लेना या कुछ भी और काम करना इज जस्ट लाइक अनदर सिटीजन ऑफ द कंट्री। सो दैट हैज मेड, एंड वो उसको लेने के लिए पूरा प्रोसीजर होता है, आपको आइल्स देना पड़ता है, फिर आप एक फॉर्म भरते हो, फिर वो एक्सप्रेस एंट्री होती है। उसके लिए भी मैंने, मतलब ये जो पूरा प्लान था ना मेरा, जब मेरे दिमाग में आया कि मुझे कंपनी खोलनी है, तो मैंने उस टाइम पे सब प्लान कर लिया था कि मुझे ये करना है, मुझे कनाडा में करना है, मुझे यूएई में अपना ऑफिस खोलना है, तो मैं ऐसे ऐसे अप्रोच करूंगा तो 3 साल बाद जाके मैं इसको इंप्लीमेंट कर पाऊंगा। सो आई प्लान दिस इन 2022, आई वॉज एबल टू डू इट इन 2023 के एंड में बेसिकली, ठीक है। तो मतलब बाहर की बात कर रहा हूं मैं। तो या कनाडा ऑफ कोर्स अगर कोई नया बंदा जाता है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज दे डोंट अलाउ थिंग्स। आई एम लाइक द सिटीजन, सो इट वाज वेरी इजी फॉर मी। हाउएवर यूएई जो गवर्नमेंट है ना, वो बड़ा रिस्ट्रिक्ट करती है चीजें, वो आपको अलाउ नहीं करती कि आप आके ना हमारे यहाँ बिजनेस करना स्टार्ट कर दो, वो नहीं करते। उनका ये है कि अगर आपको यूएई में काम करना है, पहले यहां हो, कंपनी यहां रजिस्टर करो, तब हम आपको कुछ भी करने देंगे। सो यूएई में मैंने क्या किया, यूएई में मैंने रजिस्टर नहीं करी कंपनी, भाई मैं क्यों पैसा दूं इतना, मेरा तो इन्वेस्टमेंट जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे एक नोन थे जिनके लिए मैंने क्लासेस ली थी पहले, ट्रेनिंग्स, यूएई में जाके, फुजायरा में जाके, फुजायरा इज अनदर एमिरेट इन यूएई, राइट। वहां पे होटल्स है बेसिकली। तो दैट्स हाउ आई केम इन कॉन्टैक्ट विद हिम ईयर्स बैक, राइट। बट ही वाज सो इम्प्रेस्ड, राइट, कि जब मैंने कंपनी खोली, मैंने उनको बोला कि ऐसा है, मुझे यूएई में बिजनेस करना है। सो मैंने उनको क्या बोला, मैंने कहा ऐसा है, मैं आई कैन नॉट ओपन माई कंपनी ओवर देयर, लेट्स हैव अ पार्टनरशिप। और पार्टनरशिप कैसे, एमओयू पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे, जिसमें कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो वो किसी चीज से बाउंड नहीं है, मैं किसी चीज से बाउंड नहीं हूं, बट मेरी प्रेजेंस है यूएई में। तो अगर मेरा कोई यूएई का क्लाइंट है, तो आई गेट इट रूटेड वाया हिम बिकॉज ही इज माई पार्टनर। ओमनीलन प्रेजेंट है वहां पे उनके थ्रू, तो मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं किया, बट आई गॉट माई प्रेजेंस इन यूएई। सो दैट्स हाउ आई एस्टैब्लिश माई वर्क ओवर देयर, बिकॉज यूएई के लोग जो होते हैं हमारे, वो जब उनको सर्टिफिकेट देते हो, तो वो सर्टिफिकेट में उनको यूएई गवर्नमेंट का लोगो चाहिए होता है, वो नहीं लेते, नहीं तो उन्हें मतलब नहीं, आप यूएस यूके कहीं पे भी कंपनी हो, आपको उनको है कि हमारी गवर्नमेंट का यहाँ पे टैग और बारकोड होना जरूरी है, तो उसके लिए आपको वहां पे कोई कंपनी होनी चाहिए। सो दैट्स हाउ आई एम हैविंग माय प्रेजेंस इन यूएई। इन कनाडा एंड इंडिया आई एम हैविंग माय इंडिविजुअल प्रेजेंस एज वेल। सो या दैट्स व्हाट इट इज, दीस आर द चैलेंजेस। वो अभी मैं बता रहा हूं तो आपको थोड़ा सा स्मूथ लग रहे हैं, बट जब हम एक्चुअल में कर रहे होते हैं तो आपको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ती है, चीजें समझनी पड़ती है, कितना परसेंट आप शेयर कर रहे हो पार्टनर के साथ। कभी पैसा बहुत ज्यादा आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो एग्रीमेंट आपका ब्रीच हो जाए। तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच यू हैव टू डील एवरी डे, एवरी नाउ एंड देन। सो या दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ ओनिंग अ कंपनी। ग्रेट यार, आई थिंक हमने बहुत सारी बातें कर ली इस पे, चैलेंज में आपका टाइम भी बहुत सारा ले लिया है। बस एक बात है कि जैसे आपने कहा कि यूएस में रिस्पॉन्स जो होता है कि हम इंडियन से क्यों सीखे, तो एक तो फर्स्ट ये कि आप कितने कंट्रीज में इस वक्त एक्टिवली प्रेजेंट है, एंड सेकेंड एक्चुअली हाउ दे आर टेकिंग दिस थिंग कि हम एक इंडियन से कैसे सीखें। स्टिल इफ मैं वो पूछूं कि रिस्पॉन्स कैसा रहा शुरू में, अभी तो यू हैव क्या आपने कहा कि आपका बेस था, लाइक अगर हम शुरू से आपके पूरे स्टार्टिंग से लोग, तो किस तरीके से लोग लेते थे इंडियन से सीखने को? Okay, so answering your first question, ki, our physical presence is in India, Canada, and UAE. However, I've been teaching in more than 50 countries right now, right? Like we provide our training to more than 50 countries. So that is through, of course, our network of trainers. That's a separate part. Coming to your second question, see, उनको अगर मैं उस तरीके से टैग करूं कि उन्हें इंडियन से इशू है, तो वो जस्टिफाई नहीं होगा, दैट्स नॉट एग्जैक्टली करेक्ट। उनको इश्यूज आते हैं प्रोनाउंसिएशन से, right? That's first part. So they are not judging you on the basis of your knowledge, or they are not demeaning you. It's just that they see, a pronunciation plays a very pivotal role over there. That's first part, right? Second, यूएस के जो लोग हैं ना, उनको रेगुलेटरी बॉडीज
से सर्टिफिकेशन लेना ज्यादा लगता है कि हम मतलब, क्योंकि ASQ यूएस का है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, राइट? तुमको लगता है कि यार हमारे यहाँ अगर अगर सर्टिफिकेशन दे रहे हो तो आप ASQ से रेगुलेटेड करके दो, या फिर आप ISSC से दो। जैसे मेरे पास सर्टिफिकेशन है वो ISSC से है, वो यूके की बहुत बड़ी रेगुलेटरी बॉडी है। सो उनका वो भी फैक्टर रहता है कि जो कंपनी आ रही है या तो वो यूएस की हो। इसीलिए आप देखोगे अगर तो इंडिया में मैक्सिमम कंपनीज जो है उनका या तो डायरेक्ट या वर्चुअल ऑफिस यूएस में है, सबका है। उनके एड्रेस में इंडियन ऑफिस नहीं डालते, यूएस ही डालते हैं, जस्ट टू शो दैट वी आर हैविंग अ प्रेजेंस ओवर देयर सो वी कैन गेट द यूएस क्लाइंट्स, राइट? थर्ड क्या होता है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, यूएस कनाडा में पीपल प्रेफर ऑन साइट ट्रेनिंग्स, राइट? सो it's basically the corporate, they prefer on-site training. So on-site trainings के लिए they always go with a local trainer. So even though I'm having my company in India, I need to have a trainer who is based out of US, right? So that I can get that business. तो वो एज एन इंडियन करके तो मुझे नहीं लगा लगा अभी तक कि उन्होंने किसी को ऐसे नहीं दिया हो बिजनेस। बट यार ये चैलेंजेस जो होते हैं ये ऑफ कोर्स यार, वी आर इंडियंस। अभी मेरा प्रोनाउंसिएशन यूएस वाला तो नहीं होगा, राइट? अगर मैं ट्राई भी करूंगा दैट विल लुक लाइक ए फेक एक्सेंट, राइट? तो उससे कोई मतलब नहीं बनता। तो वो एक चैलेंज है जो इंडियन कंपनी सारी फेस करते हैं, उसमें कुछ ऐसा गलत भी नहीं है, इज वेरी राइट। अगर वो आप कन्वे ही नहीं कर पा रहे, समझा ही नहीं पा रहे उनको, जैसे इंडिया में भी मैं जाता हूं कहीं पे, अगर कोई कंपनी में लगता है कि मैंने इंट्रोडक्शन लिया, मुझे समझ में आया कि ये पार्टिसिपेंट्स को मैं उस लेवल की इंग्लिश पे बात नहीं कर सकता, तो मैं हिंदी में बात करता हूँ। दैट इज हाउ वी वर्क, राइट? तो उनका अपना है कि भाई हमारा प्रोनाउंसिएशन हमें क्लियर होना चाहिए ना, जो पढ़ाने आए हो आप, राइट? सो ट्रस्ट तो उनको रहता है फैकल्टी पे, ऑफ कोर्स एज पर द एक्सपीरियंस जो फैकल्टी लेके आता है। बट या ये छोटे छोटे चैलेंजेस हैं जो एक एज अ कंपनी आपको फेस करने पड़ते हैं जब आप किसी फॉरेन कंट्री में जाते हो। जैसे एक साउथ अफ्रीका के क्लाइंट थे हमारे, राइट? वेरी बिग बैंक इन साउथ अफ्रीका, दे डिडंट गिव मी द बिजनेस, राइट? जैसे कि नहीं हमको तो लोकल चाहिए। भाई आई डोंट, उस टाइम पे मेरे पास लोकल ट्रेनर नहीं था साउथ अफ्रीका में, मेरे पास लोकल नहीं है, आई हैव टू ट्रैवल। नाउ व्हेन आई हैव टू ट्रैवल, दे हैव टू पे फॉर माय ट्रैवल कॉस्ट, दे हैव टू पे फॉर माय अकोमोडेशन। तो वो एक तो मुझे ट्रेनिंग का कॉस्ट दे रहा है, उसके बाद मुझे ये कॉस्ट भी ऐड कर ले, तो अगर उसके बाद कोई लोकल अपॉर्चुनिटी है तो वो क्यों क्यों एक्स्ट्रा पे करेगा, राइट? तो ये छोटे छोटे चैलेंजेस होते हैं जो आपके पास रहते ही है, एंड यू हैव टू टैकल इट, यू नो, इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ सच बिजनेसेस। या ग्रेट। सो या दिस इज वो मुझे ये इसलिए पूछा था, मुझे इसलिए ये चीज पूछनी थी कि द रिस्पॉन्स की अगर हमारे दिमाग में ये चीज है भी कि एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, या फिर मैं ये नहीं कह रही आप में है या फिर मेरे में है, बट जनरली हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वी आर नॉट इन दैट प्लेस कि हम किसी को सिखा पाए। तो दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग दिस कि ऐसा कुछ होता नहीं है जनरली, इफ यू हैव दैट टैलेंट, इफ यू हैव दैट नॉलेज, तो लोग सुनते हैं। Yeah, इट डजंट डिपेंड कि आप कहाँ से आ रहे हो, बट अगर आप सिखा पा रहे हो तो आई थिंक पीपल आर ऑलवेज रेडी टू लर्न फ्रॉम यू। absolutely. If you are confident in what you are training, राइट? तो फिर जैसे आप अगर ट्रेनर हो ना, तो आप अपने जब किसी के सामने जाते हो तो आपके लिए वो सब स्टूडेंट्स हो जाते हैं, नो मैटर वो 20 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठा है या 30 साल का, वो आपके लिए स्टूडेंट है, राइट? तो अगर आपको उतना कॉन्फिडेंस है अपनी ट्रेनिंग पे, अपनी एक्सपर्टीज पे, तो ये चीजें थोड़ी सी डिसॉल्व मिटिगेट हो जाती है, बहुत ज्यादा आपको इफेक्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए मैंने बोला कि मैं बहुत टाइम से यूएस क्लाइंट को पढ़ा रहा था, इसलिए Yeah. मुझे बहुत ज्यादा चैलेंज हुआ नहीं। ग्रेट यार, ग्रेट। आई थिंक हमने काफी बातें कर ली और आपका काफी टाइम ले लिया। Yeah, that's fine. I'm really loving it. या एग्जैक्टली, मतलब जिस तरह से आप बता भी रहे हो ना, यू आर सो एक्साइटेड, तो मुझे भी अच्छा लग रहा है सुनने में। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतने एक्साइटेड होकर बताते हैं अपनी चीजें, और जब आते हैं तो फिर मजा भी आता है सुनने में कि उनकी जो Absolutely. challenge है, उनकी जो स्टोरी रही, तो स्टोरी जानने में अच्छा लगता है। एंड आई रियली लव्ड ऑल दिस पार्ट। तो Thank you. ओमनी लर्न के बारे में वैसे तो हमने बहुत ही बात कर ली है, इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कुछ बचा हुआ है। बट इफ देयर इज एनीथिंग दैट यू आर प्लानिंग नेक्स्ट, एंड एनी एआई कोर्सेज वगैरह भी आप प्लान कर रहे हो कि वो भी आपके में रहे, तो कोई टेक्निकल भी कोर्स रहेंगे या फिर यही रहेंगे, डेटा ड्रिवन रहेंगे? नहीं नहीं, अभी जो कोर्सेज है वो सारे हैं, एआई भी है उसमें, एमएल, एआई, जनरेटिव एआई, सारे मैंने कोर्सेज देखा था हैं। तो वो सारे वही सारे थे, मे बी उसके बाद ऐड हुआ होगा। हाँ, I've added some courses a few months back, right? तो मैंने शायद आपको नया फाइल नहीं भेज पाया, I'm sorry about that. But we have added a lot of courses. In fact, we have added some courses related to legal as well, law as well, legal drafting, patent drafting, corporate law, etc. We have added some languages, German, Spanish, French languages. Right? I'm so fond of learning French, right? So that's how I thought of adding it as well. And basically, see, Omnigen का ऑब्जेक्टिव अभी भी, पहले भी वही था, अभी भी यही है कि जो भी नेसेसरी एजुकेशन है वो स्टूडेंट्स को या रिस्पेक्टिव पर्सनल्स को मिले, राइट? मतलब उनको मिले, उनको कोई एक इशू नहीं आना चाहिए उसको लेने में। तो जब मैं कोई भी कोर्स लॉन्च कर रहा हूं, अगर मैं उसके लिए बहुत हाई एंड फैकल्टी भी रखता हूं, सो आई मेक श्योर कि कॉस्ट जो कोर्स की हो वो कम ही रहे,
राइट? तो आई कैन रिड्यूस माई प्रॉफिट मार्जिन टू एंश्योर कि क्वालिटी ऑफ द कोर्स रिमेन्स दैट. सो अभी केवल एक क्वालिटी मैनेजमेंट तो सिर्फ कैटेगरी नहीं है जिससे सभी लोगों की हेल्प हो जाएगी या उनको एजुकेशन मिल पाएगी. सो आई हैव टू एक्सप्लोर एंड अदर पुट अदर ऑप्शंस एज वेल टू मेक श्योर कि जिसको जो चाहिए वो उसको यहाँ पे आके मिल जाना चाहिए. राइट? सो दैट्स व्हाट आई सेड एंड दैट्स व्हाई आई मार्केट एज वेल. इनफैक्ट एक अभी प्रोग्राम रन किया था हमने बाय द नेम अपस्किल इंडिया प्रोग्राम. वो भी चल ही रहा है. राइट? सो वी आर गिविंग 70-80% डिस्काउंट ऑन द कोर्सेज जस्ट टू एंश्योर कि हर किसी को हर तरीके से एजुकेशन पहुंचा सके. राइट? तो दैट वाज द मोटो एंड द विजन ऑफ द कंपनी एंड विद दैट ओनली आई एम वर्किंग एंड विल वर्क इन द फ्यूचर एज वेल विद दैट मोटो ओनली. ये पता है, एक कोचिंग की बात होती है. हमारे इंडिया में बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है. ये अब एक्चुअली मैं पहले बोल देती हूँ, आई एम डन विद द क्वेश्चंस. माय जितने भी क्वेश्चंस थे वो हो चुके हैं. एंड दिस इज द जनरल थिंग जो एक कोचिंग के बारे में होती है ना. आई हैव दिस थिंग बिकॉज ऑफ माय एक्सपीरियंस और जो भी मैंने आसपास देखा है, जिस तरह से भी हमारे इंडिया में जो मार्केट चलता है कोचिंग का, कि आप कोचिंग तो चला देते हो, बचपन से कोचिंग शुरू हो जाती है, बट समहाउ विद टाइम यू अंडरस्टैंड कि वो कोचिंग उतनी इफेक्टिव नहीं थी, या कहीं ना कहीं आपको ना एक लैग भी दे देती है. लाइक वो आपका टाइम कंज्यूम करती है, आपका मनी कंज्यूम करती है, बट इट वोंट गिव यू दैट मच ऑफ कि आपको उससे कुछ मिल भी रहा है. आरओआई तो चलो ठीक है, लेकिन आप जिस एज पे रहते हो, व्हेन यू आर स्टूडेंट, आप 11th-12th की कोचिंग कर रहे हो, इनफैक्ट वो भी काम एक बार कर जाएगी, लेकिन उसके बाद से जो होती है ना, शुरू एक इंजीनियरिंग के लिए, एंट्रेंस के लिए हो गया, और बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं. तो वो कोचिंग 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 जो एक वो मुझे लगता है एक नेगेटिव वर्ड हो गया है. आपका कोर्स है वो अलग चीज है, बट स्टिल इट्स काइंड ऑफ एन एजुकेशन. राइट? या तो उस पे अगर मैं बोलूँ तो हाउ यू हैव दैट काइंड ऑफ कि आपको जो क्वालिटी है वो एक बच्चे को समझ में बच्चा इन द सेंस आपका जो भी क्लाइंट है उसको समझ में आ जाए, कि उसको ना इस तरह से समझ में आता है कि उसके लाइफ में कहीं ना कहीं वो यूज हो जाए. वो कहाँ तक आप उसको कितना अचीव करते हो, उसका कितना ध्यान रखते हो, क्योंकि व्हेन यू आर डन विद एवरीथिंग, आपको आपको सर्टिफिकेट मिल गया, बट टाइम ना जब आपको लगता है कि यार उसका कोई मतलब तो हुआ ही, वो कोई फायदा तो हुआ ही नहीं. वेरी ट्रू. नो, वो इट्स वेरी चीज ट्रू. तो कहीं ना कहीं नेगेटिव, एजुकेशन के लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं. सी दैट्स वेरी ट्रू. एंड ये मैंने बीच में बोला भी था कि कंपनीज क्या कर रही है आजकल, सब बेचने में लगे हैं कि कुछ भी उठा के बेच दो. ठीक भेज है? देगी. तो हाँ, अभी क्या हो रहा है, उससे एक बार तो क्लाइंट मिलता है, बाद में नहीं आता, क्योंकि उसको दिख जाता है ना आपने तो पैसा कमा लिया, जो आपने एग्जैक्टली बोला अभी. ठीक है? कि कोचिंग में मैंने अगर जैसे मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की कोचिंग दे रहा हूँ, तो वो 6 दिन की हुई सपोज. राइट? तो वो 6 दिन मुझे खत्म करके नहीं आना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव है खत्म करके आ जाऊं. मेरा ऑब्जेक्टिव है कि वो 6 दिन उनके लिए यूजफुल हो. राइट? वो अगर नहीं होंगे तो फायदा नहीं होगा. तो इसीलिए जैसे मैंने जब एक कोर्स की बात करी थी आपसे बीच में, सेल्फ पेस ई लर्निंग की, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होते हैं, अभी आप बाकी किसी कंपनी में अगर देखोगे हमारी कंट्री के अंदर या बाहर भी, तो वो डब्ड कोर्सेज होते हैं. मतलब जैसे वॉइस ओवर्स होते हैं उसमें, प्री रिकॉर्डेड होते हैं. बट ओमनी लर्न में आई हैव मेड इट माई सेल्फ, आई रिकॉर्डेड माई सेल्फ, बिकॉज आई वॉन्टेड कि वो जो कोर्स उनके पास जाए ना, वो एक फॉरेनर का या किसी का डब करा हुआ कोर्स ऐसा ना चला है कि वो बस टाइम कंप्लीशन ही खत्म करो, एग्जाम दो, सर्टिफिकेट आ जाएगा. उनको सीखने को मिलेगा बिकॉज दे कैन सी मी ट्रेनिंग देम. राइट? सो अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा उसका एस्पेक्ट बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का, कि पहली बात तो आपका बिजनेस माइंड बहुत क्लियर होना चाहिए, कॉन्शियस बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप किस चीज के हिसाब से करना चाह रहे हो. तो मैंने आपको ये पहले भी, मतलब आई हैव कोटेड इट मल्टीपल टाइम्स इन टुडेज सेशन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड करना और उसको ये फील कराना कि आप वो सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल करोगे. राइट? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्लाइंट, जैसे मेरा एक क्लाइंट है मुंबई में है, एंड इट्स अ वर्ल्ड बिगेस्ट फार्मा कंपनी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी फार्मा कंपनी है वो. तो उन्होंने जब मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया, तो उन्होंने बोला कि आप लाइक वी वांट कि आप एक दिन की ट्रेनिंग दो केवल स्किल्स पे, और हमारे एम्प्लॉयज को इंप्लीमेंट करने को चाहिए. ऐसा नहीं कि आप मतलब 8 घंटे खत्म करो, पेमेंट हुआ आपका, यू कैन गो. दिस इज नॉट समथिंग व्हिच आई वांट. So when I understood the requirement, सर 1 या 2 hours के अराउंड बैठा था. I've understood their requirements. I gave them pre-assessment. I have assessed their employees जो ट्रेनिंग लेने वाले थे. On the basis of that, I have tailored a whole content for them. I've shared it with them prior to training, and I've checked कि वो ट्रेनिंग जो उन्होंने कंटेंट मैंने उनको दिया है, उन्होंने रिव्यू करके जब एक्सेप्टेंस दी कि yes, this is what we are facing the problems, and this is what help us in solving it. Then I further went and gave them a training. So point is कि आप, जैसे मेरे कॉन्शियस में ये नहीं था कि यार मैं 5 घंटे खत्म करके निकल जाऊं. मेरे कॉन्शियस में था कि वो 5 hours उनको इतना ज्यादा इंपैक्ट करना चाहिए कि अगले साल भी अगर वो ट्रेनिंग का सोचेंगे तो मेरा नाम आना चाहिए. तो है वो बिजनेस माइंड ही, क्योंकि मैं बिजनेस चाहिए, बट उसका मतलब ये नहीं है कि मैं क्वालिटी खराब कर दूं. आई हैव टू गिव माई फुल.
द सेम थिंग आई आस्क माय ट्रेनर्स एज वेल। तो जब हम हायर करते हैं, ट्रेनर को बोलता हूँ कि आप अगर यू आर टेकिंग 2000 पर आवर, टेक 3000 पर आवर, आई डोंट माइंड, राइट? आई डोंट वांट कि क्वालिटी डिग्रेड हो या मेरे क्लाइंट को फील हो कि उसकी रिक्वायरमेंट अंडरस्टूड नहीं करी गई सही से। सो इफ यू डू गो बाय दैट मैनर, तो कोचिंग कोचिंग नहीं लगेगी। ठीक है, कोचिंग तो बहुत सारी, आपने बहुत सही बोला, बहुत सारी कोचिंग है, राइट? अभी आप इंडिया में सर्च कर दो एडटेक, कम से कम नहीं तो 100 से ऊपर कोचिंग्स आएंगे आपके पास हर पार्ट से। बट कौन किस तरीके से डिलीवर करता है, दैट्स मेक्स अ डिफरेंस, एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली हेल्प मी एज वेल। क्योंकि मैंने, आई हैव नेवर डन इट विद, नॉट ओनली विद OmniLearn, मैंने जिस कंपनी में भी काम किया है, अगर मैंने जब स्टार्ट किया था तो आई स्टार्टेड एट 1000 पर आवर, 1000 एक घंटे का मतलब मुझे, राइट? दैट्स अ चार्ज आई टुक, राइट? सो उसमें भी मेरा जो कॉन्शियस था ना, व्हेन आई एम ट्रेनिंग, अगर मैं ऑफिस से थका हुआ भी हूं या कोई भी और काम है, आई हैव टू गिव माई फुलेस्ट टू माई ट्रेनिंग्स, राइट? वैसे मैंने आपको थोड़ा, इफ यू कैन रिकॉल, आई यूज द वर्ड आर्टिस्ट। ट्रेनर जो होता है ना, एक आर्टिस्ट, जैसे एक स्टैंड अप कॉमेडियन होता है ना, वो जब भी उसको स्टेज पे चढ़ता है, उससे पहले उसके साथ कुछ भी हुआ, उसको स्टेज पे खड़े होकर हंसाना है सामने वाले, राइट? सेम हैपन विद ट्रेनर। जब ट्रेनर सामने आता है, नो मैटर आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या स्ट्रेस है, फाइनेंशियल जो भी है, आपको वहां पे यू हैव टू शो योर पैशन, राइट? कि वो पैशन अगर आपके अंदर है ना, तब भी वो कन्वे हो पाता है सामने वाले की तरफ, right? So with that conscious, if you'll work, then coaching won't feel like a coaching. It will be definitely productive, right? So that's how I work. Great, yeah, great. I think the conscious, आपको जो clear conscious है to to serve people, this is important. And business, I think business mainly जो होता है, अगर आप business लोगों के साथ कर रहे हो, तो it is about the serving people. और जब आप serve करते हो, कहीं ना कहीं आपको फायदा होगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप clear conscious के साथ कोई काम करते हैं तो आपको उसका कोई रिटर्न ना मिले। बिकॉज पीपल वांट दैट, हमें हर कोई क्वालिटी चीज चाहता है, कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हाँ चलो ठीक काम हो गया ना, चलता है। तो मतलब हर कोई चाहता Absolutely. है कि उसे क्वालिटी चीज मिले, आप कपड़े से लेके कोई भी चीज लो, आप अच्छा ही चाहते हो, जो भी प्राइस Yeah. पॉइंट आप दे रहे हो। तो यू आप कोई भी प्राइस पॉइंट रखो, एटलीस्ट डिलीवर दैट यू आर सेइंग कि अच्छा मैं ये डिलीवर कर रहा हूँ, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। True. थैंक यू सो मच अमोल्या। अमोल्या, मतलब बहुत अच्छे से हमने ये किया, मुझे मुझे इस सेशन में बहुत मजा आया, बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला, एंड आई रियली होप आपको अच्छा लगा हो। Absolutely. हमने काफी सारा टाइम इन्वेस्ट किया इसमें। It's a very really, I was not expecting हम इतना, we'll go that much, considering the time of your podcast. But first of all, see, I can tell you I can give you information only when I'll see that you are, you are liking it, or you are understanding, or you want to, make it a productive podcast for the others as well. So which I can see. So when I'm telling you something, the question which you are asking, they are so structured, well structured, कि अगर मैं information छुपाना भी चाहूंगा ना, तो आप निकलवा लोगे। That's how it is, right? So I really liked it, and I really appreciate that you decided to have this podcast with me, and hopefully the information which we are trying to convey out of this podcast, would go to the respective concerned people. So yeah, thank you so much for that. I really, really appreciate it. Thank you. ठीक है यार, थैंक यू सो मच। Absolutely. इतने सालों बाद कनेक्ट होके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि मतलब साथ वाले जब इतना अच्छा काम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है देख के, तो मुझे वाकई में बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट सुन के जब मुझे पता चला था तो तब भी बहुत अच्छा लगा था। वी कैन हैव अनदर सेशन जहाँ पे आप और Sure, बताइए आपने आपने आगे क्या काम किया, आगे किस तरीके से हो रहा है, एंड या Thank you. थैंक यू Thank you, and it's very nice connecting with you. You really touched that one. Yeah, I thought we wouldn't be quoting it in the session, but yeah, of course, that it's very nice connecting with you. अपने college वाले दिन थोड़े से is kind of nostalgic over here. So yeah, that's great. So thank you so much, Rashmi, and all the very best for your podcast. थैंक यू सो मच। Thank you. Yeah, bye.